Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Like I've said this before, and I'll say it again, the civil services exam is becoming more and more uncertain, ambiguous, and vague. And therefore, if you have given more than 3 attempts in the civil services examination, one should ideally look for a backup. This video is an attempt to explain exactly that process. In this video, I have spoken to a lot of people who have actually executed their own backup options. So in this video, I've spoken to people who are working in RBI, people who have cleared BPSC, people who are working in political consulting, people who are working in Teach for India. And I've taken interviews with all of them because मुझे लगा ये better है than rather than I give you a prescription about how to follow a backup plan. You hear it from the people who have actually done and followed through on this process themselves. Now I understand I myself am a part of the coaching industry, but I think it is very, very important for us and all of us in the coaching industry to be honest about this. This might be a conflict of interest, but मेरे हिसाब से backup plan लेना is not a wrong choice. It is a very smart thing to do, and it is something one should do. So like I have committed before, I'm going to talk openly about it, and you'll see in this video various people who have executed their backup options and what you can do if you don't want to continue in this cycle. So firstly, in this video, I have spoken to a very dynamic individual called Anshuman. Anshuman is someone who has given various attempts in the civil services exam, but he didn't make it. But he didn't stop there. He did his master's in public administration. He cleared NET JRF. He also cleared the UPSC EPFO exam. He's also studied French to find a backup option for working in diplomatic missions abroad. The next video you'll see is me talking to Anshuman about this and how he has executed his backup options, and he'll also talk about what one should do if this is something that interests them. Take a listen. So, hi Anshuman, and thank you for being on Clarity for UPSC and talking about backup options. Hope you're doing well. Yes, thank you, sir. Thank you for inviting me. So, प्लीज अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, योर यूपीएससी जर्नी एंड व्हाट हैपेंड एंड देन व्हेन डिड यू डिसाइड टू टेक अ बैकअप ऑप्शन. यस सर. सो बेसिकली पहले मैं सैमसंग में काम कर रहा था एंड सैमसंग में मैंने 2 साल काम किया 2014 से 2016 तक एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ सोशल कॉज में जाना चाहिए. तो 2016 में मैंने अपना सैमसंग का जॉब छोड़ा. मैं सैमसंग में कोरिया में पोस्टेड था, तो वो मैंने छोड़ा और फिर मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया. अच्छा. तो फिर मैंने टीच फॉर इंडिया में मैंने रूरल अहमदाबाद में जाके पढ़ाया बच्चों को. तो उसमें मुझे लगा कि हाँ, मेरी ये कॉलिंग है, मतलब ये मेरा पर्पस है. मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना. तो फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि एक कोई ऐसा कुछ फिक्स्ड कोई अच्छी सर्विस होती है क्या कि जिसमें हम लोगों की हेल्प भी कर सकें और पैसा भी ठीक ठाक सा मिल जाए, अपनी फैमिली भी अच्छी चल जाए और अपनी लार्जर कॉलिंग को भी मैं कुछ कर पाऊं. तो फिर मैंने देखा कि हाँ, यूपीएससी होता है. एंड क्योंकि मुझे अपनी पर्सनालिटी ऐसी लगती थी दैट आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स एंड आई लाइक टू नो अबाउट पीपल एंड आई लाइक टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो. जैसे मैंने फ्रेंच भी सीखी है, तो मुझे लगा था मेरी पर्सनालिटी के लिए डिप्लोमेसी अच्छी रहेगी. सो देन आई रिसर्च कि क्या यूपीएससी से बन सकते हैं. तो यस, आई केम टू नो कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है. इनफैक्ट वो टॉप 3 चॉइसेस में से रहती है एस्पिरेंट्स के. तो फिर वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी एंड वही मेरा एक ड्राइविंग फोर्स था, वो मेरा एक मोटिवेटर था, वो मेरा एक वाई था कि वाई आई वांट टू ज्वाइन, वाई आई वांट टू डू यूपीएससी. तो फिर मैंने 2017 में मैंने अपना टीच फॉर इंडिया का फेलोशिप मैंने छोड़ दिया था एंड आई स्टार्टेड दिसंबर 2017 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. एंड then I went through a lot of toppers के videos and उनकी transcripts and उनकी journey कैसी रही. So I came to know that UPSC एक बहुत अच्छी dream है, but at the same time it is also a gamble. तो मुझे लगा कि since it is a gamble, तो we don't have to put all our eggs in one basket, जैसा कहते हैं. So we have to diversify the risk. We have to diversify our options. तो मुझे लगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी तो बहुत अच्छे से करूंगा, बट मुझे उसके साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक्स भी अपने रखने हैं. एंड कहीं ना कहीं मुझे अपना अगर मेरे पास मान लीजिए 18 घंटे हैं पढ़ाई के, 6 घंटे मैं सो रहा हूँ और मान लीजिए 18 घंटे मेरे पास वेकिंग आवर्स हैं,
तो 18 घंटे मुझे सारे के सारे यूपीएससी में अपने नहीं देने थे। आई वॉज श्योर अबाउट दैट। तो उन 18 वेकिंग आवर्स में से मुझे 10 घंटे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देने थे, और बाकी टाइम मुझे अपने और एक्टिविटीज को देना था। तो उन और एक्टिविटीज में जो मैंने अपने पैरेलल बैकअप्स बनाए, उसमें से ये था कि यूपीएससी जर्नी के साथ साथ मैंने अपना जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने मास्टर्स भी किया। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, एंड उसमें मैंने 2018 जुलाई में मैंने एनरोल कर लिया था, जो फुल टाइम मास्टर्स प्रोग्राम था जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो वो मैं साथ साथ कर रहा था, और वो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लिया क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी वही था। तो इस वजह से मेरी कोहेरेंट एक स्ट्रैटेजी बन गई कि कोचिंग मैं कर रहा था, राउज आईएएस से मैं कोचिंग कर रहा था, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मुझे गाइडेंस मिल रही थी जामिया मिलिया इस्लामिया से। जैसे डॉक्टर रुमकी बासु हैं, और काफी अच्छे प्रोफेसर हैं जो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑथर्स भी हैं। तो मुझे काफी अच्छी गाइडेंस मिल रही थी। एंड फिर मैंने सोचा कि खाली मास्टर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक अपनी स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में वी हैव जनरल स्टडीज, बट वंस यूपीएससी जर्नी एंड्स देन वी डोंट हैव एनी स्किल्स टू शो। तो मुझे अब साथ साथ में स्किल्स भी डेवलप करनी थी। इस वजह से मैंने 2018 में जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड गोइंग विद माय पर्सनालिटी, आई आल्सो जॉइंड Alliance Francaise. Alliance Francaise helps people to develop their French language skills, and then it places students via various internship opportunities in Europe, in francophone countries, in North Africa, in France, and then the people get placed with the diplomatic missions also as translators. Those who translate to French language, Hindi to French and English to French and vice versa. So वो मुझे लगा कि it is a useful skill to have, and क्योंकि मेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी ऐसी है कि मुझे पसंद है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना, तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं फ्रेंच भी सीख रहा था। मैंने फ्रेंच के कोर्सेज भी करे वहां पे जामिया मिलिया में, और मैंने Alliance Francaise में भी मैंने फ्रेंच सीखी एक्चुअल फ्रेंच स्पीकर्स से। एंड साथ में मैंने प्रोफेसर्स जो ट्रेंड हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने उनसे मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिया मैंने जामिया से। एंड फिर फाइनली जामिया में क्योंकि मेरी फर्स्ट रैंक आई, तो वो ठीक है, मुझे गोल्ड मेडल भी मिल गया उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, तो मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि सब कुछ मेरा कोहेरेंट रहा, मतलब क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है मैंने वो भी परस्यू किया, और मैंने एकेडमिक इंटरेस्ट है मेरे, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया, और साथ में मेरा कोचिंग भी चल रहा था यूपीएससी का। एंड फिर जब मेरी मास्टर्स खत्म हुई, सो आई डिड नॉट स्टॉप। सम पीपल स्टॉप ओवर देयर। वो अपने बैकअप ऑप्शन को आगे तक लेके नहीं जाते। मतलब उनको लगता है मास्टर्स हो गया, चलो अब यूपीएससी ही करते हैं, जो बाकी के 4 अटेम्प्ट बचे हैं, जैसे मेरे 4 अटेम्प्ट बचे थे, तो फिर वो उसी अटेम्प्ट में लग जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। लेकिन आई एनरोल्ड इन पीएचडी ऑल्सो। आई एनरोल्ड इन पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी। तो वो भी आई थिंक आई ट्राइड फ्रॉम जामिया, बट क्योंकि तब कोविड चल रहा था तो जामिया में बड़े डिलेज हो रहे थे। तो फिर देन आई मूव टू जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो अभी भी सर मेरा वो चल रहा है, अभी बस फाइनल स्टेजेस पे है मेरा पीएचडी। अच्छा। तो अब वो पार्ट टाइम मैंने करा लिया है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसके साथ पार्ट टाइम हो जाता है वो। तो जैसे let's say they do a masters in PubEd and then they go for public policy, इनके पीएचडी करें या मास्टर्स पे रुके, तो इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है? लाइक व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज वन कैन लुक एट? लेट्स से उनका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इफ समवन हैज डन अ मास्टर्स हियर? हाँ जी। तो अगर आपने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया है, सो यू गेट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस थिंक टैंक्स लाइक विवेकानंदा फाउंडेशन and several other Takshashila Foundation in Bangalore, and even as interns in various national law universities like NLU Bangalore, NLU Delhi. तो ये सारे options definitely रहते हैं। and हाथ के हाथ क्योंकि आपने मास्टर्स कर लिया है and you have a good knowledge, so you can also attempt JRF, UGC JRF. तो आप JRF क्रैक करो, and जैसे मैंने करा, मेरा ट्रैक रहा कि मैंने JRF क्रैक कर दिया। and अगर आप सीरियस civil servant aspirant हो, then JRF is just a piece of cake and everybody knows that JRF कुछ खास नहीं है।
आप आराम से क्रैक कर लोगे इफ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आपने जेआरएफ क्रैक करा आई एंड थिंक नाउ। ऑप्शनल की पढ़ाई हम कर लेते हैं, हाँ अगर जी, हाँ जी। इसमें जेआरएफ देना हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, रिलेटिव यूपीएससी से तो बहुत यस, रिलेटिवली इजी है। रिलेटिवली बहुत इजी है सर, एंड ऑब्जेक्टिव है। तो हम्म। स्टूडेंट्स को मैं यही एनकरेज हमेशा करता हूँ कि आप जेआरएफ तो दे ही दो, जेआरएफ के लिए ट्राई करो जब आपने मास्टर्स कर लिया। हम्म। क्योंकि उससे क्या होता है सर कि एक कॉन्फिडेंस आता है, आपने अगर जेआरएफ निकाल लिया तो हम्म। एनी यूनिवर्सिटी विल हायर यू, एनी यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी, फॉर द पीएचडी और इवन एसोसिएट, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो रहता है थोड़ा सा, उसके हम्म। लिए वो हायर कर लेते हैं एंड आपको ठीक ठाक सा पे भी मिल जाता है, यू स्टार्ट अर्निंग। क्योंकि हम्म। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, क्योंकि हम्म। उनको अर्निंग नहीं हो रही ना उनकी। तो राइट। जहां जब आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको 35-40,000 वो जेआरएफ का जब पैसा अकाउंट में आता है ना, जब यूजीसी आपको देती है, तो राइट। इतनी अच्छी फीलिंग होती है, एंड दैट कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट्स टू योर प्रिपरेशन इन यूपीएससी ऑल्सो। राइट। एंड फिर आपके मेंस, जब आप मेंस लिखते हो ना, आपका अकाउंट में आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपके 30,000 60,000 ऐसे हो रहे हैं, और आप मेंस लिख रहे हो, तो आप मेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस से लिखते हो सर। जब राइट। आपका, जब सैलरी आ रही होती है ना, आपके बैंक बैलेंस जब बढ़ रहा होता है, राइट। तो आई थिंक ये भी बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छा है कि पहले मास्टर्स कर लिया, फिर जेआरएफ निकाल दिया, और जेआरएफ के बाद पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर लिया, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो आप अपनी यूपीएससी जर्नी को छोड़ नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं और इन डेप्थ जा रहे हो अपने ऑप्शनल में। एंड राइट। साथ के साथ आप अपना जीएस भी डेवलप कर रहे हो, राइट। क्योंकि अभी भी आपके पास 6-7 घंटे तो है ही ना दिन के, तो अपना जनरल स्टडीज भी पढ़ सकते हो उसमें। तो तो जेआरएफ की थोड़ी सी और बात मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे लेट्स से समबडी हैज डन अ मास्टर्स, कई लोग इग्नू से भी जैसे मास्टर्स करते हैं, तो जेआरएफ की प्रिपरेशन में व्हाट आर द थिंग्स टू लुक आउट फॉर। मतलब जैसे मान हम्म, लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे पीएसआईआर या लेट्स से सोशियोलॉजी किसी का ऑप्शनल है, उन्होंने यहाँ पर ऑप्शनल किसी कोचिंग से अच्छे से पढ़ लिया और उन्होंने इग्नू से मास्टर्स अलोंग साइड कर लिया। मुझे लगता है अगर आप लाइक इफ यू आर स्टडिंग वेल फॉर यूपीएससी तो मास्टर्स इग्नू से तो आप कर ही लोगे, राइट? इग्नू से हो जाए। हाँ, इग्नू से तो कर ही लोगे अगर कहीं और से नहीं तो व्हाट आर दी वेज नाउ टू गो फॉर देन गिविंग जेआरएफ? थिंक योर वीडियो इज फ्रोजन अ लिटिल बिट। श्योर श्योर सर। या, so how to go हाँ for JRF after that? That is what we were discussing. Yeah. हाँ, सो बेसिकली अगर आपने इग्नू से भी किया है Hmm. मास्टर्स, Hmm. इवन देन यू कैन गो फॉर जेआरएफ। Hmm. तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा Hmm. उसमें। क्योंकि क्या होता है जेआरएफ में, एग्जाम में, कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछता है और रिपीट करता रहता है। तो Okay. आपको लास्ट 10 ईयर्स के, आपको जेआरएफ के अपने पीएसआईआर अगर आपका है जैसे, तो Hmm. आपको पीएसआईआर के लास्ट 10 ईयर्स के निकालने पड़ेंगे पेपर, एंड उनको प्रैक्टिस करना है। Hmm. एंड जो उसमें जो ऑप्शंस आए हुए हैं, उन ऑप्शंस के अराउंड आपको प्रिपेयर करना है, कि वो ऑप्शंस से वो क्वेश्चन बना देगा नेक्स्ट ईयर Hmm. यूजीसी जेआरएफ जो है। Hmm. तो उसके अराउंड आपको 10 साल के प्रिपेयर करने हैं, और साथ में क्योंकि इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहता है, तो Hmm. रिसर्च एप्टीट्यूड की एक सेपरेट आप बुक खरीद सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं इसकी जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है, यूजीसी जेआरएफ रिसर्च एप्टीट्यूड। Hmm. तो रिसर्च एप्टीट्यूड पे आप अपना डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एक पेपर रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, और Hmm. एक पेपर रहता है और बाकी का कंटेंट रहता है आपका स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट, जैसे पब्लिक पॉलिसी या पीएसआईआर या ज्योग्राफी। Hmm. तो आप इस तरह से यू हैव टू डू अ वेरी टारगेटेड स्टडी, एंड आई वुड से it just takes around 2 to 3 months to prepare. If you are doing daily, if you are doing daily practice, 2 to 3 months में आपका यूजीसी जेआरएफ की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, जिससे आपका जेआरएफ निकल जाएगा इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। Hmm. तो जेआरएफ तो आपका निकल जाएगा, एंड जेआरएफ निकाल के देन यू हैव टू लुक फॉर यूनिवर्सिटीज विच आर सुटेबल फॉर यू। जैसे मुझे लगता है कि पीएचडी ऐसे कहीं से भी नहीं कर लेनी चाहिए। Hmm. पीएचडी ऐसा नहीं है कि पीएचडी इज अ मैराथन, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। Hmm. और बहुत सारे चैलेंजेस पीएचडी में, अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, जैसे यूपीएससी में आते हैं वैसे पीएचडी में भी आते हैं। Hmm. तो पीएचडी अपनी एक ठीक ठाक सा एक यूनिवर्सिटी चुन लो, और Hmm. यूनिवर्सिटी बहुत ही हाई लेवल भी जरूरी नहीं होती पीएचडी में। Hmm. पीएचडी में आपका खुद का हार्डवर्क होता है। तो मुझे लगता है कि घर के आसपास अगर हो, जहाँ पे एक्सेसिबल हो और आसानी से आप जा पाओ आ पाओ, और पार्ट टाइम ऑप्शन भी हो, उसमें हाइब्रिड मोड भी हो, इस Hmm. तरीके की वो यूनिवर्सिटी आप ले लो। तो Hmm. ये है सर, और पीएचडी में एनरोल करा लो तो आपका जेआरएफ का पैसा तो आता रहेगा, और साथ में आप यूपीएससी की तैयारी करते रहो अपनी, जो भी आपके अटेम्प्ट्स बचे हैं। तो ये भी And अच्छा जैसे बैकअप कोई ऑप्शन है। पीएचडी कर लेता है
तो हाँ उसके जी। बाद फिर प्रोफेसरशिप जाने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर दैट, लाइक आपको वहां से अगर आपको हाँ प्रोफेसर। हाँ हाँ। तो हम्म। सर इसमें क्या है कि जैसे जब आप पीएचडी इकोसिस्टम में होते हो, तो ऑलरेडी आपके जो गाइड्स हैं और को सुपरवाइजर्स हैं ना, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो हम्म। एक नेचुरल ऑर्गेनिक कनेक्शंस बन जाते हैं। एंड देर आर हम्म। अ लॉट ऑफ प्रोफेसर जिनसे आप ऑलमोस्ट डेली ही बात कर रहे होते हो। कोई हम्म। प्रोफेसर होता है यूके में बैठा है, कोई सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल में बैठा हुआ है, हम्म। कोई यूएस में बैठा हुआ है हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में। तो आपके ऑर्गेनिक कनेक्शंस इतने सारे बन जाते हैं कि जब आप पीएचडी खत्म करते हो तो हम्म। ऑलरेडी आपके पास कनेक्शंस रहते हैं, और ऑलरेडी प्रोफेसर बोले हुए होते हैं आपको कि आप मेरे पास आ जाना, हम्म। आपको हम पोस्ट डॉक दे देंगे। तो एक ऑप्शन तो पोस्ट डॉक रहता है पीएचडी हम्म। वालों के लिए। हम्म। और सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो यूनिवर्सिटीज में, डिपेंडिंग अपॉन द वेकेंसी। तो हम्म। अगर वैकेंसी है तो आप जेएनयू डीयू उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। हम्म। और आप बहुत अच्छे से, मतलब आपको उसकी प्रॉब्लम तो उतनी नहीं होती है। चैलेंजेस तो डेफिनेटली पीएचडी स्कॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा हैं। हम्म। आई वुड नॉट से कि चैलेंजेस नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। आसान नहीं है जॉब वॉब मिलना। बट यस, कनेक्शंस हैं सर। मतलब एक होप तो रहती है कि हाँ, मतलब पीएचडी के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ठिकाना हो जाता है, एंड इनकम भी डिसेंट रहती है। तो वो एक अच्छा हम्म। बैकअप ऑप्शन रहता है, प्रोफेसर बनना, या थिंक टैंक में जाके एकेडमिक स्कॉलर बनना, या फिर पोस्ट डॉक करना इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर एक साल पोस्ट डॉक करके सर फिर वापस आते हैं लोग, फिर इंडिया में उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में हायर कर लिया जाता है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी। इनमें हम्म। आपका बहुत अच्छा पैकेज भी लग जाता है जब आप पोस्ट डॉक करके आते हैं वापस। तो आप एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं इन यूनिवर्सिटीज में। तो इट्स अ हम्म। वेरी गुड ऑप्शन सर। तो वो अच्छा रहता है। The last thing I want to ask you about is EPFO because, हाँ जी। like, I know you are now selected in EPFO. तो अगर यस सर। किसी को अब सिविल सर्विसेज से EPFO की तरफ जाना हो तो हाँ एग्जाम जी। कितना डिफरेंट है, कैसे उसके लिए पढ़ना है, और लाइक व्हाट अप्रोच शुड बी फॉलोड। यस सर। सो बेसिकली सर, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो यूपीएससी का ही एस्पिरेंट था हमेशा से। हम्म। बट बीच में कोविड के टाइम में सर नोटिफिकेशन आया यूपीएससी ईपीएफओ का। हम्म। और उसमें मेंशन था इन्फोर्समेंट ऑफिसर करके, अकाउंट्स ऑफिसर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब यूपीएससी ही ले रहा है तो लेट्स सी कैसा एग्जाम है। तो हम्म। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा। तो एक्चुअली यूपीएससी ईपीएफओ का जो सिलेबस है सर, वो 60% है जो एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर। थोड़ा सा बीच में द वॉइस ब्रोक अ लिटिल बिट, आप कह रहे थे तो 60 मैं सेम। हाँ। या वहां तक सुना था मैंने, 60% इज द हाँ सेम। जी, हाँ जी। या। 60। यस यस यस। 60% यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस मैचेस विद यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स। ओके। सो बाकी का जो 40%, बाकी का 40% है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। हम्म। उस 40% में क्या क्या है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम्म। इंश्योरेंस, ऑडिट। हम्म। ये चार पांच ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो हम्म। कि एक अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर को आने चाहिए। क्योंकि हम्म। ईपीएफओ का काम फाइनेंशियल है, ऑडिट है, फ्रॉड मैनेजमेंट है, रिकवरी है। तो ये हम्म। सारे आपको आने चाहिए। इस वजह से एस्पिरेंट को ये पढ़ना पड़ता है अलग से। हम्म। ऑडिट की जानकारी लेनी पड़ती है, लेबर लॉस की लेनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑडिट एंड इंश्योरेंस। हाँ, ये चार पांच टॉपिक हैं। तो इसके लिए सर मुझे लगता है डेडिकेटेडली अगर पढ़े इंसान तो 3 महीने में ये हो जाता है, ये जो और मैंने आपको टॉपिक्स बताए। कहाँ से पढ़ना होता है। कोई इसकी ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं है। मैंने मैंने पर्सनली, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा था। हम्म। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर हैं जो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके कुछ कुछ वीडियोस पढ़े हुए हैं, मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिए थे। तो हम्म। अकाउंटिंग के मैंने अलग से वीडियो देख लिए 2-3 घंटे के। हम्म। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए मैंने अलग से यूट्यूब कर लिया। लेबर लॉस के लिए मैंने सारे लेबर लॉस पढ़ लिए अलग से। मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट से लेके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 तक, हम्म। कॉम्पनसेशन एक्ट, जितने भी हैं थोड़े थोड़े ब्रीफ मैंने सेलियंट फीचर्स उनके सब यूट्यूब से ही देख लिए। हम्म। क्योंकि उस टाइम कोविड भी चल रहा था, तो बस बैठे बैठे मैं यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था, और उसने काफी मेरी हेल्प कर दी शायद यूट्यूब हम्म। में।
हम्म तो मेरा 40% सिलेबस जो ईपीएफओ का था वो मेरा यूट्यूब ने करवा दिया, हम्म एंड फिर मेरा हो गया था। कोई स्पेसिफिक बुक की मेरे हिसाब से उतनी जरूरत नहीं है इसमें। हम्म इसमें बस आपको अवेयर रहना है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से और लेबर लॉज से। ज्यादा वो हाई फाई पूछता नहीं है, ज्यादा राइट। इन डेप्थ वो जाता नहीं है ईपीएफओ, वो भी एंड जनरल ही बाकी है। जो प्रीलिम्स वाला सिलेबस जो कॉमन है, उसके हाँ क्वेश्चन जी। आर दे सेम लेवल और या इजियर होते हैं क्वेश्चन रिलेटिवली, आप कहोगे? हाँ सर वो मॉडरेट से रहते हैं, मतलब हम्म यूपीएससी सीएससी में तो मल्टीपल ऑप्शंस वाले आते हैं ना, हम्म इसमें वन लाइनर्स भी आ जाते हैं, तो थोड़े हम्म सिंपल ही रहते हैं वो, आई वुड से। तो वो आप जिसने यूपीएससी सीएससी का जो मटेरियल है, जैसे हिस्ट्री का, फ्रीडम स्ट्रगल, हम्म पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जैसे हम पढ़ते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। वो राइट। जो भी सीएससी का मटेरियल है बस वो अपने टिप्स पे रखे एस्पिरेंट, तो हम्म जनरल स्टडीज उसका निकल जाएगा जो 60% है यूपीएससी ईपीएफओ का, वही अपना रिवाइज करता बाद रहे वो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? जैसे प्रीलिम्स लेट्स से क्लियर होता है, उसके हाँ बाद अगला स्टेप क्या हाँ है ईपीएफओ में? हाँ, तो ये सर ये इसकी खास बात है ईपीएफओ में, हम्म इसीलिए ये थोड़ा कहते हैं एस्पिरेंट्स थोड़े ज्यादा अ, उत्सुक रहते हैं ईपीएफओ के बारे में कि रिलेटिवली ये इजी एग्जाम है। वो क्यों है कि जब आपने प्रीलिम्स निकाल दिया तो मेंस नहीं है फिर हम्म इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू है और आप यूपीएससी बोर्ड को डायरेक्ट फेस करते हो। हम्म तो ये इसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि हम्म अगर आपने प्रीलिम्स अपने बलबूते पे आपने प्रीलिम्स अगर निकाल दिया, हम्म देन यू गेट टू फेस द यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड डायरेक्टली। तो ये हम्म बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद बस आपको खाली इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, मेंस प्रिपरेशन नहीं करनी। हम्म इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, डैफ अच्छे से भरिए, और अपनी हॉबीज और जो आपको दिखाना है वो सब करिए, एंड आपका आधे घंटे का करीब का यूपीएससी का इंटरव्यू चलता है। हम्म एंड उसके बाद विद इन अ मंथ एंड टू जैसे यूपीएससी डिक्लेयर करती है फिर रिजल्ट आता है उसका। तो अंडरस्टूड। ये काफी काफी फास्ट एग्जाम है, हम्म एंड नॉट जस्ट फॉर द प्रोफाइल ऑफ एओईओ बट ऑल्सो फॉर एपीएफसी असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। हम्म तो assistant PF commissioner is even more lucrative because you are not giving mains and you are becoming a group A officer in government of India. हम्म तो आई थिंक इससे अच्छा और क्या हो सकता है अगर किसी का प्रीलिम्स निकल जाए एंड वो सीधा ग्रुप ए ऑफिसर बन रहा है पर्सनालिटी टेस्ट के दम पे। हम्म तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट, तो ये तो एक अच्छा बैकअप है ही उसके पास। राइट। यस सर। All right. Thank you so much, Anshuman, for sharing your या experiences. I'm also very I've learned a lot actually, and it's great to see how much श्योर। you worked on yourself. ऐसा नहीं है कि आपने बस कोई एक चीज करी है. It's great that you also understood that this the preparation is, it's ambiguous, it's uncertain, but you were following so यस many सर। things, and shows a lot यस। about your brilliance. And it was so nice to talk to you. So thank you for your थैंक यू। time. Thank you, sir. So nice talking to you, sir. Thank you. All right. Now let me come to the second dynamic individual that I have interviewed for this video. Her name is Neha. Neha is someone who has given 6 attempts in the UPSC Civil Services exam. Unfortunately, she could not get through, but again, she did not stop there. The thing she did then she went for Teach for India fellowship, and she also started to work as a counseling psychologist. So in the next video that you'll see, I've interviewed Neha and I've asked her about how she has executed this backup plan, how she has gone for Teach for India, what is the job profile like, who are the people that they accept, and if teaching and social impact is something that is up your alley, how to go to this field and how to execute this backup option. Take a listen to what Neha has to say. So, hi Neha. Firstly, Hi. thank you for doing this, and please tell us what you're doing right now. I am doing two things right now. I am a fellow at Teach for India. I Mhm. just joined it a month ago, and I'm also a counseling psychologist. So basically, I provide therapy sessions and workshops under my own organization as well, which is Buddhisati. So these are the two things that I'm doing right now. All right. So you're both at Teach for India and also doing a counseling psychologist. You're also a counseling psychologist at the moment. So can you tell me a little bit about your UPSC journey and what happened and why, when, and how did you decide to go for a backup plan? So my UPSC journey started back in 2018, and I gave all my 6 attempts at UPSC. Hmm. And so yes, I've written two mains, and
I was expecting interview call and everything, but yes, it didn't happen. And the setback was so much that I lost all the confidence. But yes, we needed some backup because I was not from an engineering background. I dropped out from MSc Physics in 2018 in my final year just to pursue UPSC. So I thought I need a backup. And so what I decided first thing is psychology was my optional. So I decided to pursue masters in it in 2022. And at the same time, it was after my fourth prelim that I decided I need a backup. So I just started that from there onwards after four prelims and mains. The journey was too tough and rough. Then I decided ki this is the time I need to switch. I need to find an option. So it was that time that I decided to Just if pick you up don't on my mind, back. one thing I'd like to ask you. What did you do your bachelor's in and from where? So I did my bachelor's in science, BSc, from the local college in Jaipur, the Okay. Subodh Girls College, and I was doing my master's in from the local college itself. It's Okay. in the final year that I decided to pursue UPSC. And then when did you go for your master's in psychology and from where? 2022 from IGNU, while I was still pursuing the fifth and sixth attempt for UPSC. All right. So you did a master's from IGNOU while you were still giving your attempts. All right. Then from there, please take it from there. So, like, I decided on specializing in counseling, which we have to take specialization in final year. But in 2022, I know कि I needed something apart from just degree. So I joined an NGO in 2022. It's a Okay. local NGO, Unstoppable 20 Foundation, which was very close to my area. And since Could you I repeat the worked name there, again, please? Unstoppable 20 Foundation. Okay. So it's in Jaipur, so it works for underprivileged kids. And there I worked for 3 years. So I worked Hmm. with their team and the groundwork, the rehabilitation, the teaching, and the counseling part, which came later when I specialized in counseling. Hmm. So for 2 years, I was just doing the teaching and rehabilitation work. But when I was doing my internship in counseling, I actually started my groundwork with children there in last year, I think January, February, when I was not able to clear my mains, the fifth attempt. After it, I gave my sixth attempt, but I was not serious about it because I was done and I was exhausted. But I Right. had something to fall on to. So Right. that was from there I started and continued. Right. So that was the organization like which built on my career and my experiences. Apart from that, I did my counseling internship in a Monometrics Counseling Center, which is in Jaipur itself, and I volunteered in their project Rahat, which was to provide counseling services to people in depression and other mental health issues. So I worked with both children and adults. And by the end of like last July, when I was done with my all prelims and exhausted all attempts, I worked for 2 years with the organization, and I had my degree as well, and I also Hmm. had experience in working in the mental health field. All right. So let's say किसी को अब somebody is seeking a backup plan today. So if they have to go through this path, let's say they want to go to Teach for India or they want to go to psychology, especially as a counseling psychologist, what is the method of following this path? Like कैसे ये सारा काम कोई कर सकता है? What are the steps they should take? So basically, this field actually enters in the social development domain. So Hmm. we come with the spirit that, okay, this is the one which we want to pursue, even in UPSC. So I Hmm. decided that social development sector is the one which I want to serve. Right. So my friend told me about Teach for India, that Teach for India hire throughout the year, like they conduct assessments and all. So last year itself, I applied to them in July. So the assessment round happens and it continued till Feb end. So anybody who would like to actually join Teach for India, which is a renowned not-for-profit organization, so you can come and teach children and also become a leader and develop something, be part of a community development program. So you can actually go for the website, check their work and their whatever they see their Instagram account, see their YouTube Hmm. account, and you can apply it till Feb end there. And there is a rigorous interview process. It is spread in 3 to 4 stages. Once you have to fill a very detailed application form, which takes around 2.5 hours to 3 hours. And somebody who is UPSC background, they can actually write things in, beautifully. They can put their vision on the board. But of course, you need some experience. See, they gave due importance to either you are coming directly as a graduate, then it's fine. But if you are coming after some years of your graduation, then you need some experience. I would suggest that UPSC aspirants, while they are pursuing their third attempt or fourth attempt, they should join some organization.
even as a part-time, as a volunteer, so that they can say something, convince them that this is the vision, this is why I'm coming here. So first they have to clear the application round, then the phone interviews, and then there is a detailed assessment round. But if you have the vision, because they constantly ask you a question, why are you coming here and not going anywhere else? So you have to have very, clarity on this thing, ki why Hmm. this thing. So you have a detailed plan and you can justify it to them, then you have higher chance of making it up. In fact, many people who are, giving UPSC, want to give UPSC or have given UPSC in past, are actually at Teach for India. So I've met them. So it's a good prospect to pursue. And this is about Teach for India. But say if you also want to pursue psychology, somebody who has either Sorry for psychology. stopping you there. I'd just like to ask you a couple of more questions about Teach for India. तो आप कह रहे हो कि Mhm. 3-4 stages का interview round है and you have to fill your application form, but also there has to be let's say a reason for you to go there and also some experience. तो जैसे आप कह रहे हो that you had joined some local NGOs who were working in your area, तो उनमें जाने का क्या process होता है? Like you join as a volunteer there, you approach them and you join. Yeah. This is how I started. See, even if you don't have any experience, you can apply, but the chances of actually clearing the interview increases if you have certain experience, groundwork. So that will increase. So say if you decided that, as I told you, that from July to Feb end, they have their assessment and into application round going on. So Hmm. say if you want to join, you can go for 1 or 2 months somewhere, join as a volunteer, and many organizations actually want volunteers. So you go there, you get some groundwork, and you actually realize this is where I want to work. Because see, I know people want career, but you don't want to be part of some organization where your values don't align. So they will also get a ground reality Hmm. check and all. So that will help. Having an experience of some kind will help. And can you tell me about the prospects in Teach for India? Let's say somebody gets through, then what are the long-term prospects? What is the broad pay structure like? And what can you do from here? Like once you're here, then where do you go from here? So at Teach for India, the initial 2 years we are fellows here. So we teach children of different grades, Hmm. and we are paid fellowship amount, and it is not fixed. Like the basic pay is fixed, but the city compensation allowance or depends on different cities. So Teach for India works only in metro cities like Delhi, Mumbai, Hmm. Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hmm. Kolkata. So these are the cities that they work in. So after 2 years, so between 2 years, it depends how you work. See, if you work very well, Teach for India hire some of the people, and there are very high number of vacancy here itself. At the end of the second year, they bring so many companies, different organizations for placements as well. Okay. So after 2 years, you have higher chance of placements, and it also many people actually start their own startups. So in second year, we are required to actually implement a project, concept and project, and there are investors groups who will collaborate to execute that project, and that project can become your startup. You can find investors for that, or you can actually join somebody else's startup, because Teach for India has a mini alumni network which has their own startups. So many, like if you have worked here, if you have proven your actually acumen, so you have higher chance of getting into one of their organizations or any other organization they bring, or you can start something of your own. And But what sort apart of from that, roles are there, like in the startups that you uh, join or the placements that you're looking for? What sort of roles are we looking at? one such is the you design curriculum designing is there, Okay. teacher training is there. Hmm. Also, uh, it's like tech roles are also there if you want to. Like many of the tech startup has started by alumni here. So it's mostly associated with leadership, teaching leadership, community management, coordinating with schools and companies. Many of the think tanks hire from Teach for India. Many of the companies CSR, corporate social responsibility, they have to contribute something. They have to implement projects, and also many of them hire from Teach for India, because as I told you, we are not just teaching in these two years. We Hmm. have to actually manage the community engagements. We have to implement projects. So project implementation part, especially related to underprivileged backgrounds. So Hmm. many other not-for-profit organization takes you, hires you for the relationship manager roles. So it's not just restricted to teaching roles. So say any XYZ company, you have some sort of relationship manager's role, coordinator's role, you can actually go there and show your experiences. So Understood. it is like skill based opportunities are existing here as well, and you can look for them outside as Understood. Now let's come to psychology. So since you did not have a bachelor's degree in psychology, but it was your optional. So well. अगर किसी को psychology की तरफ जाना है, so what would you recommend is a good path to go there?
See, I would master's where if you pursue it regular or distance, it's your choice. Like it depends on people to people what they can afford, and so Hmm. whatever you pursue in psychology, practice matters the most. So Hmm. I was from IGNOU. Many people doubt that IGNOU backgrounds doesn't lead to jobs or anything Hmm. or the, Hmm. but you need to practice. So I actually associated with many organizations and started working. So initially I had to work for free. So you have Hmm. to do it too in psychology. You need to prove that you have work experience and you are skilling and you're networking. Hmm. Networking is very important in LinkedIn. You can use it well. But Hmm. once you started, you can actually establish your private practice as well. Like you have a degree, you need Hmm. master's degree to actually establish your private degree. Hmm. So it's not important. Yeah, it's not required to have a graduation degree in psychology to practice as a psychologist, Hmm. as a counseling psychologist. As a clinical psychologist, it's important now, as per the updated norms, to Hmm. have a graduation degree and do MPhil or something similar to MPhil. They have Hmm. brought the program, but you can practice as a counseling psychologist. And I would say work experience again. You have to work for a month, 2, 3 months for free, but then you can start and charging for private practice. And it depends. Psychology doesn't pay very, in an initial stage. There is a lot of struggle. You need to find clients, you need to collaborate with organization, but you can also participate in group work, workshops and all. They pay higher. So it's more like how much you practice, how much of effort you put in psychology will pay you, and your degree background will not really determine much of it if you are actually continuously practicing even in your internship days and after your degree ended. So after you've done your masters, where are the opportunities to get an internship and other places where you can get such experience, which would then help you to go on and practice independently? There is a bad situation in psychology internships. You have to pay for it, no matter Okay. which college you are part of. So you have to pay for internship. So you will find it everywhere. Every platform is offering internship to Hmm. psychology graduates or who are pursuing masters. It's just you have to pay for 2, 3 months. And the same organization, if you like it, they may provide you clients. If not, you can, based on that internship, uh, find a supervisor. We need supervisor. Only Hmm. under them we can practice before finishing our masters. So you need a supervisor, and then you can get clients either from an existing organization, or you can reach out to other organization and you can say it's a commission kind of a thing. Like you can Right. give major And chunks to them. yeah. So that kind of a thing. So, but yes, internship is you Hmm. have to pay for it. So it's easily available because Hmm. you have to pay. Got it. So just last question. Uh, from what I've heard, I think going to Teach for India will cash in on the fact that your UPSC experience, or whatever you've studied, it does help bring it back, because you might be teaching subjects that you've read here, and you might be able to Mhm. align with that vision of social development, right? What do you think are the disadvantages of, let's say, if you've sort of spoken about the disadvantages of psychology, that it's got a long incubation period and Mhm. internships are hard to find. If somebody has to go for Teach for India, what do you think are the disadvantages, and what should one look out for? Initial pay is quite less. So if you are solely relying on Teach for India at later age, so if you're 22, 23, so it's fine, completely fine. But Right. many of us who come late to this organization, we find it hard to manage for 2 years. After 2 years, the pay is nice. But also it depends on the people. Say how I will perform here will decide how the kind of opportunity I will get after 2 years. So if Right. I'm just being the teacher and not actually engaging with a lot of projects, I have a very limited chance. I would be at max what? A teacher only. So Right. the opportunity will be less for me. So it depends on how I perform. And also the pay will be less if you're not proving your worth here. So Hmm. it's predictable only to that extent you perform, you prove your abilities, and you try to be creative here. So Hmm. there is uncertainty, element of uncertainty here. It's not that much, but pay again depends on how much you can prove yourself. And initial pay is quite less. Hmm. Also, to find good opportunity out, you need to sometimes go to out of India as well, even from TFI, because TFI is part of Teach for World. So it's part Okay. of that organization as well. So in India, it might not give you that many opportunities, but you can find a really good opportunity outside from the experience here, because UN recognized TFI's work and Right. everything. So basically, the hard work doesn't really stop even when you come here. But I do Yeah. think that the both of them are like good opportunities, and going out of the UPSC cycle, at least for some time, if you, let's say, want to even continue giving your attempts, this can be something where you can find a backup and find some financial and mental stability.
In So fact, yes. yeah. Sorry to interrupt, but this is what you said in the end. I actually agree. Pursue TFI or something like that while you're preparing for your exam, so that by then, when you're done with your attempts, you will have something solid, good Right. financial stability as well. So, Right. Right. Thank you so much, Neha, for doing this. Thank you for thank being. you so much for inviting me. All right. So that was very nice talking to Neha, and she gave a lot of insightful ideas. Let me now talk to another person whose name is Guru. Guru has had the distinction of clearing both the RBI Grade B exam as well as the BPSC exam. He's also an ex UPSC aspirant who gave various attempts, multiple attempts. But after that, he decided to find a backup option. He's currently working with the Reserve Bank of India. He's also cleared the BPSC exam multiple times. I guess he's cleared it 3 times. So now let's hear from Guru and let's see what he has to say with regards to how to attempt the RBI exam if someone wants to go to that field, and how to prepare for BPSC and transition to a state PCS exam from UPSC. Let's hear from what Guru has to say. So hi Guru, thank you for being on Clarity for UPSC and Uh, thank you for coming here to discuss backup options. Thank you, Dr. Chivin, and pleasure to have you with. All right. So Guru, you have cleared both RBI Grade B exam as well as BPSC. तो दोनों Yes, की बात करेंगे. तो ठीक है. पहले तो आपने कब अपनी यूपीएससी जर्नी में डिसाइड किया कि आप दूसरे एग्जाम्स भी देंगे? सर, जस्ट लाइक मैंने 21-20 में मेरा जेएनयू हो गया था, हम्म. मास्टर्स. और हम्म. देन आई वाज सर्चिंग कि मुझे कॉर्पोरेट जाना है या फिर यहाँ जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में. हम्म. और तो मैंने डिसाइड किया यूपीएससी देते हैं 20-21, और मे बी मिड 22 जब थोड़ा पैटर्न चेंज होने लगे हैं, तो इट वाज कोविड टाइम एंड फाइनेंशियल भी इशू था, तो आई थॉट कि थोड़ा बैकअप ऑप्शन देखा जाए. हम्म. सो तो 3 रिलेटेड, अटेम्प्ट्स के बाद आपने सोचा? हाँ एग्जैक्टली. तो हम्म. रिलेटेड जॉब्स में सर्च करने लगा, तो क्या था, तो आई वाज नेटिव फ्रॉम बिहार, तो मैं हम्म. वहाँ से बीपीएससी मेरे लिए काफ़ी लुक्रेटिव था. हम्म. और आई वाज मास्टर्स इन जेएनयू इन हम्म. इकोनॉमिक्स, तो मेरे लिए आरबीआई का भी एक अच्छा. काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था, प्लस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था, बट उसमें बहुत कम सीट्स आती हैं, तो इट इज चेरी ऑन द केक वाली बात है. और साथ ही साथ यूपीएससी सर, ये हम्म. सारे ऑप्शन थे. आई कंसीडर मेरे जॉब रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. आई थॉट हम्म. सेट, और मैंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी है इस प्रिपरेशन के साथ. सो हम्म. आई स्टार्टेड वर्किंग, कॉमन जो भी चीज़ है, पैटर्न है हमारे, वो किया हम्म. और करते तो रहा. आपने जैसे 3 अटेम्प्ट्स दिए तो फिर आपने सोचा कि यू विल एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम बहुत अनसर्टेन है यस. और कुछ नहीं पता है इसमें, क्या एम्बिग्विटी काफी रहती है. हम्म. तो पहले आरबीआई के एग्जाम की बात करते हैं. ठीक है सर. थोड़ा इस बारे में बताइए. जैसे मुझे मान लीजिए कुछ नहीं पता है इस एग्जाम के बारे में. ठीक है. एग्जाम कब होता है ठीक है. और कौन कौन से एग्जाम लेता है आरबीआई, हाँ. कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना होता है और फॉर्मेट क्या रहता है? ठीक है सर, आरबीआई दो तरीके का एग्जाम लेता है, एक ग्रेड ए लेवल पे और एक ग्रेड बी लेवल पे. तो जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लाइक मैं ग्रेड बी ऑफिसर हूँ, तो हम्म. हमारे बैंकिंग में BCDEF मतलब बी एंट्री लेवल है ऑफिसर्स की आरबीआई में. ये हम्म. हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं. तो दोनों के फॉर्म अलग अलग आते हैं. तो जो ए ठीक है. का फॉर्म आता है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं, और जो नॉर्मल हमारे जो हम सीसेट में रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे होता है. बट अगर मैं ऑफिसर्स लेवल की बात करें, जो ऑफिस ग्रेड बी ऑफिसर्स लेवल एंट्री की बात होती है सर, मतलब ग्रेड बी राइट. ऑफिसर्स जो आरबीआई निकालता है, तो वो एंट्री लेवल है, ऑफिसर्स की एंट्री से एक नीचे पे नहीं होती है. तो बी लेवल पे आरबीआई 3 एग्जाम कंडक्ट करता है. एक जनरल का एग्जाम कंडक्ट करता है, और दो स्पेशलाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करता है. तो मैं स्पेशलाइज कैटेगरी से हूँ, मतलब स्पेशलिस्ट जो कैटेगरी आरबीआई की, उससे हूँ. हम्म. जनरल में सर हमारा जनरल नॉर्मल पीटी मेंस इंटरव्यू होता है. बट हम्म. इस प्रोसेस की सबसे दिक्कत है कि हमारे पास पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है. जैसे रेडली हर एग्जाम के पीवाईक्यू अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हम्म. तो ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, तो इसके नॉर्मली पीवाईक्यू नहीं होते हैं, तो आपको हंट एंड गैदर करके, ये एक सबसे टफेस्ट प्रोसेस है आरबीआई. आप कहते हैं ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी के लिए, किसी क्योंकि रेडली पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं है, और इवन मार्केट में भी नहीं है. और उस प्रोसेस में चीजें याद रखना कि ये सवाल आया था, तो वो थोड़ा ये इस एग्जाम को रिकॉल काफी बेस्ड हो जाता है क्योंकि एग्जैक्टली. पेपर तो नहीं मिलता. राइट. हाँ, और ये इस प्रोसेस को सबसे टफ बना देता है कि आपके पास राइट. पीवाईक्यू ही नहीं है, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे. जो मतलब कोचिंग मटेरियल्स हैं वो देखना पड़ेगा, और एक्स वाई जेड आपको सिर्फ हंट एंड गैदर करना है. बट जब हम मेंस की बात करते हैं, इसमें जनरल कैटेगरी का जनरल ग्रेड बी ऑफिसर्स की बात करें, उसमें क्या कह सकते हैं हम, जैसे इंग्लिश मैथ रीजनिंग होता है, सबका सेक्शनल कट ऑफ होता है, और कट ऑफ कम ही होता है. बट जो
डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अगर हम पिछले साल का देखें तो कट ऑफ 200 में करीब 60 था, उसके पहले 52 या 55 होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना ही होता है, बट वो सेक्शनल होता है। और यूपीएससी वालों के लिए एक अच्छी बात है कि जो जीएस होता है वो काफी हाई स्कोरिंग होता है। अच्छा। तो उसमें हम मतलब जो जी यूपीएससी के प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा स्कोर करते हैं वो, क्योंकि उसको उनको देखना नहीं होता, करंट से लगे रहते हैं, प्लस जो भी हमारा डे टू डे बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हमारा होता है। बट स्पेशली उसमें थोड़ा आरबीआई का जानना होता है, क्योंकि आरबीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रेफर करते हैं कि आदमी चले, क्या चला हमारी वेबसाइट पे, वो होता है। मेंस का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जब आरबीआई अपना नोटिफिकेशन डालता है तो हम्म। मेंस का प्रॉपर सिलेबस देता हम्म। है। और उसके मुश्किल से 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज आपको इंटरव्यू हो जाता है। और इस प्रोसेस की सर सबसे अच्छी बात है कि आपको 9 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है। इफ यू हम्म। आर इन दी, अब पीटी हो गया मेन, जस्ट लाइक इफ आई शेयर माई स्टोरी। हम्म। तो हमारा जुलाई में पीटी हुआ, हम्म। अगस्त में मेंस हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, हम्म। जनवरी में, मतलब अक्टूबर में मेंस का रिजल्ट आया, जनवरी में इंटरव्यू था, 26 जनवरी को कंफर्म हो गया कि मैं हम्म। ऑफिसर बन गया। तो मतलब 6-7 महीने में आपके पास एक जॉब होती है। अब राइट। प्रोसेस, हाँ, तो ये काफी अच्छा इनकी स्टोरी है। तो आपको हम्म। 6-7 महीने में अगर आपने लगा है तो यू विल गो थ्रू कि आपको हो जाता है। तो जैसे मैं पूछूं, जैसे पहले तो ग्रेड ए और ग्रेड बी के एग्जाम्स हैं। हम्म। तो ग्रेड ए में जो जॉब लगती है वो मैनेजर पोजीशन, असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन है। यस यस। और ग्रेड बी में जो जॉब है वो मैनेजर के है, वो वो ऑफिसर लेवल के, हाँ, वो बैंकिंग में मतलब वो वो, हायर हाँ, लेवल पोजीशन है। एग्जैक्टली वो हायर लेवल राइट। है। तो अब जैसे ग्रेड बी में जनरल वाला जो आप कह रहे हो, एक जनरलाइज्ड एग्जाम है और एक हम्म। स्पेशलाइज्ड एग्जाम है। यस स्पेशलाइज्ड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सर, स्पेशलाइज में उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स होती है। तो एक स्टैटिक्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें स्टैटिक्स वाले ही कर सकते हैं जो मास्टर्स हैं, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में हम्म। स्टैट्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं। और एक हमारे इकोनॉमिक्स होता है जिसमें मैं हूँ, तो उसमें मास्टर्स इकोनॉमिक्स चाहिए ही चाहिए। तो स्पेशलाइज्ड अप्लाइड, में या तो आपको मास्टर्स चाहिए स्टेटिस्टिक्स में, या हाँ, ये मैथ्स में, इकोनॉमिक्स, या ये इकोन इकोनॉमिक, या हाँ, इकोनॉमिक्स। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, हाँ, उन सब चीज़ों में आपको हम्म। मास्टर्स चाहिए। और जनरल वाले में कौन अप्लाई कर सकता है ग्रेड और बी में? सिंपल सिंपल ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम आप तो अप्लाई कोई कर भी सकते ग्रेजुएट, हैं। जैसे यूपीएससी का क्राइटेरिया है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। ये तो कोई भी जैसे ग्रेजुएट। ग्रेड बी का जो जनरल वाला एग्जाम है, हम्म। जनरलाइज्ड यस एग्जाम है, उसमें सबसे पहला आप कह रहे हो प्रीलिम्स होता है। यस सर। प्रीलिम्स में आप कह रहे हो कि देर आर थ्री थिंग्स, मतलब हम्म। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तीनों और अलग। हाँ, अलग सेक्शन होते हैं और जीएस भी होता है आपका। तो चार चीजें होती हैं, जी। और चारों का कट ऑफ अलग अलग होता है, हाँ, मतलब सेक्शनल इंग्लिश कट में। ऑफ होता है आपको, हाँ। हम्म। और सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपको एक ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड करते हैं, वो आपको क्लियर करना है। तो आपको अलग अलग भी कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल भी करना है। जी जी। राइट। तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज के हाँ चार बेसिकली पेपर हो गए, या चार, एक ही पेपर में चार सेट्स होते हैं या चार हाँ अलग? हाँ, मतलब वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपके पास से अच्छा, वो कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक्सेल शीट ऑलराइट। जैसे होते हैं, सीट 1 2 3 वो राइट। नीचे होते हैं, यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट। अंडरस्टूड। तो हाँ इसमें अगर किसी को जैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो जनरल स्टडीज में तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यूपीएससी की जो एग्जैक्टली, प्रिपरेशन वो रहती है। एनफ है। मतलब अगर 50 सवाल आते हैं तो एक जनरल यूपीएससी का सीरियस एस्पिरेंट कम से कम 45 सही मारेगा, कम से कम। राइट। तो जनरल स्टडीज वाली तो प्रॉब्लम है नहीं। अब जी इंग्लिश, सर। मैथ्स, रीजनिंग में आप कह रहे हो कि हायर लेवल जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि तो बैंकिंग से कहाँ से रिलेटेड थोड़ा, तो कहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकता है कोई? कोई भी, मतलब आरबीआई के प्रॉपर स्पेशलाइज कुछ इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, मैंने तो नहीं ली थी तो आई कैनॉट से। बट हम्म। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मतलब कौन कौन से क्या क्या पढ़ाई करते हैं। मतलब यूट्यूब आजकल हर चीज का इंफॉर्मेशन है, वो हम्म। बता सकता है कि हमारा है। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ आई एग्जाम भी है, और अड्डा 24/7 है, कुछ आरबीआई है, अनु जिंदल करके तो हैं, मतलब बेसिकली काफी एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूट हाँ। इंस्टीट्यूट बट है जहाँ से ये आप पढ़ सकते हो स्पेसिफिकली इसके लिए। एग्जैक्टली बट ठीक। इसकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है सर, मैंने पहले भी कहा कि इसका पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है मार्केट में इजीली। हम्म। जस्ट लाइक हर एग्जाम के होते हैं, जैसे एसएससी हम्म। आर यूपीएससी का, तो हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि हम्म। क्या क्या आता है, बट यहाँ पे है ही नहीं। तो यू हैव टू जस्ट हम्म। हंट एंड गैदर। ये प्रोसेस को काफी ज्यादा ओपेक और डिफिकल्ट बना देता है कि आपको हम्म। पढ़ना कहाँ से है और क्या पूछ हम्म। देंगे वो, वी डोंट नो। तो ये पीवाईक्यू अवेलेबल ना होना, दिस इज अ स्लाइट प्रॉब्लम, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है। फिर जब हम मेंस पे जाते हैं, हम्म। तो मेंस में कैसा होता है फॉर्मेट? सर मेंस में प्रॉपर, जैसे लाइक हम यूपीएससी की कॉपी लिखते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको लिखना होता है। और उनका सिलेबस प्रॉपर डिफाइंड है, उससे ज्यादा बाहर से वो नहीं पूछता है, वो प्रॉपर हम्म। अपना, जब हम निकालते हैं तो उसमें लिखा तो होता है कि मेंस हम, भी कंप्यूटर बेस्ड होता है या हैंड रिटन होता हैंड रिटन, हैंड रिटन। है? हैंड रिटन होता है। मेंस ठीक। में हैंड रिटन। तो एंड कितने पेपर होते हैं मेंस में? और सर मेंस का तो मैंने जनरल कैटेगरी नहीं दिया था, जनरल वाला मैं स्पेशलाइज दिया था, तो उसमें हमारे 4 पेपर थे सर। अच्छा।
And the syllabus is out there ये on the. सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली उन्होंने लिख रखा है, हम ये पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे, और प्रॉपर वही पूछते हैं सर। मतलब उसमें इन डेप्थ जाके पूछते हैं, मतलब कुछ दे रखा है, कोई बैंकिंग से रिलेटेड Hmm. स्कीम है, तो चाहते हैं कि आप उसको 10 पॉइंट बाद जो 11वां 12वां 13वां पॉइंट है, एटलीस्ट आप वो भी जाने। ये नहीं Hmm. कि आपने 10 जान लिए, 10 सबको पता है, 11वां 12वां 13वां मतलब वही एक एक नंबर का काफी ज्यादा तो मतलब डिफिकल्ट है। बिल्कुल लाइक इट्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि हाँ मेंस में ये चीज पूछेंगे। जी सर। जी। और इंटरव्यू में फिर क्या होता है, लाइक व्हाट हैपेंस देन, उसमें उसमें क्या टेस्ट करते हैं वो? सर इंटरव्यू मैक्सिमम 20 से 25 मिनट जाता है। देयर इज बोर्ड ऑफ 6 पीपल, हम्म। अलग अलग कैटेगरी के जनरल स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। हम्म। वो दे आपने जो बैंक में कोई मतलब जनरल कैटेगरी, जनरल जो आरबीआई का एग्जाम है सर, वहाँ हम्म। पे बैंकिंग से रिलेटेड जो भी बैंक वगैरह जो और भी ऑफिसर्स हैं जो बैंक में वर्किंग हैं देख के, हम्म। तो वो पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो दे प्रेफर कि मतलब किसी ने बैंक में वर्क किया है तो ही नोज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। सो दे हम्म। प्रेफर, ऐसा कह सकते हैं कि वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारे बैच में करीब 250 बच्चे थे। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, मतलब कोई बैंक में पीओ हम्म। था, कुछ और वर्क कर रहे हैं बैंक में रिलेटेड टू बैंकिंग। तो अगर आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो वो चीज हेल्प करती है आपको। यस सर, एग्जैक्टली वो हेल्प राइट। करती है। ठीक है। एंड व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल लाइक, मतलब अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करें हाँ, तो इज इट लुक्रेटिव, इज इट गुड, या क्या कहना चाहोगे? इट इज वेरी मच लुक्रेटिव एंड वेरी मच गुड। और जैसे लोगों को पता है कि आरबीआई सिर्फ पैसे प्रिंट करता है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई की बहुत सारी फंक्शनिंग है जो हम्म। हमें जनरल पब्लिक को नहीं जानती। जस्ट लाइक अभी एक हॉटस्टार पे सीरीज आई है आरबीआई के रिलेटेड, बियॉन्ड अच्छा। रुपी। बियॉन्ड रुपी आई विल सजेस्ट कि सब देखें। बियॉन्ड रुपी, रुपी वो आई ही आरबीआई के लिए, लेकिन आरबीआई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस कि हम लोग सिर्फ पैसे छापते नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। तो ये है सर। So, and this is also what I have heard, that even the pay is very good as far as RBI is concerned, and हाँ। even like the job profile, you get to stay in metro cities या state हम्म। capitals. तो एक काफी यस। अच्छी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यस सर, आरबीआई बैंकर्स ऑफ द बैंक, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर का रोल प्ले करता है, तो इट हम्म। कैन नॉट बी आउटसाइड द कैपिटल। सो मोस्ट राइट। ऑफ द सिटीज, मतलब जितने भी स्टेट हैं सबके स्टेट कैपिटल में आरबीआई है हमारा। वो हम्म। काफी अच्छा फंक्शन करता है, क्योंकि वी हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस हम्म। थिंग्स, वो होता है। और पेज तो सर यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, कि मतलब इट इज हम्म। नॉट कि ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। हम्म। तो राइट। और और लुक्रेटिव काफी अच्छे है सर। राइट। अब एक बार थोड़ा सा बीपीएससी के बारे में बात करते हैं। ओके सर। आपने बीपीएससी भी, आई थिंक यू क्लियर्ड इट 3 टाइम्स, विच इज यस। लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बीपीएससी के लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना है, आई हैव सीन जैसे इस बार भी देयर हैव बीन अ वेरी हाई नंबर ऑफ हम्म। वैकेंसीज इन बीपीएससी, तो ऐसे हम्म। किसी को अगर बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और हम्म। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बताइए जिसने अभी तक सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है हम्म। और उन्होंने बीपीएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, हम्म। तो कैसे ट्रांजिशन करना है, क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन करनी चाहिए? सर बीपीएससी बेसिकली 67, 8 और 9 में वो यूपीएससी ट्रेंड पे था, 70 टोटली डिफरेंट था बीपीएससी। हम्म। जो हम चीजें पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, हम्म। हम लोग फैक्चुअल पढ़ते हैं, वो एग्जाम काफी फैक्चुअल होता है, वन लाइनर टाइप का। तो वन हम्म। लाइनर टाइप के एग्जाम में हमें आपको या तो आता है या नहीं आता, यू कैन नॉट हम्म। गेट एलिमिनेशन प्रोसेस। हम्म। और बीपीएससी एग्जाम साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जो यूपीएससी में नॉर्मली हम लोग अप्लाइड पढ़ते हैं, वो हम्म। बेसिक कोड पूछते हैं। तो वो हम्म। 30 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी है, जो हम लोग अभी यूपीएससी के एग्जाम में हम साइंस नहीं पढ़ते, हम लोग अप्लाइड पढ़ते हैं। तो बेसिक क्या होता है, यूनिट्स होते हैं, मतलब ये होता है तो चेंज होता है तो क्या होता है फिजिकल, तो वो हम्म। डिफिकल्ट बनाता है। और थोड़ा बिहार रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन पूछते हैं। हम्म। और ये अगर सेकंड बैकअप की अगर बात करूं, तो इट इज ओपन टू ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 85% से बिहार के लोग जाएंगे, और इट इज क्वाइट इजी टू क्रैक। आप पीवाईक्यू इसके इजीली अवेलेबल है, पीवाईक्यू कीजिए, करंट हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ते हैं, बट आपको स्पेशल थोड़ा साइंस पढ़ना पड़ेगा और बिहार पढ़ना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे आप कोई भी एग्जाम, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी भी हमें पढ़ना पड़ता है। हम्म। हिमाचल, उत्तराखंड, हर स्टेट वांट्स टू नो कि मेरे स्टेट के बारे में कोई कुछ जाने। हम्म। तो हम्म। एमपी का भी एग्जाम हुआ था, एमपी में हुआ था, राजस्थान में, सब हर स्टेट। जो जनरल हमारा, अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन की, 70 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, मतलब जो जनरल बेसिस पे हम पढ़ते हैं, बट 30 यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम द स्टेट स्पेसिफिक, हम्म। कि वो होता है। और 7 आप हो सकते हैं, मतलब सर ऐसा नहीं है आपको पढ़ना है तो कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाता बिहार का। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, हम्म। 91 गई थी आउट ऑफ 150। ओके। निगेटिव के बाद उसके पहले हम्म। भी 91 गई थी, उसके पहले हम्म। भी मतलब 90 92 जाती हैं। तो अगर आप हम्म। साइंस नहीं आता, अगर आप छोड़ भी दें,
तो बाकी चीजें आप करेंगे तो उसमें हो जाता है, और इसमें तो स्पेशली यूपीएससी के लिए जो पढ़ते हैं प्लस थोड़ा सा जनरल साइंस पे आपको एफर्ट डालना है, जी और आपको बिहार स्पेसिफिक पे थोड़ा सा एफर्ट डालना है। एग्जैक्टली ये सर। दोनों चीजें पढ़ के हम प्रीलिम्स में वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी विल यस। गेट थ्रू। हाँ, राइट। और सर इसके पीवाईक्यू अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा हंट की भी जरूरत नहीं है, मतलब कंपाइलेशन किसी का भी हम उठा सकते हैं। तो वो अवेलेबल है, वो ज्यादा अच्छा आपको हेल्पफुल कर सकते हैं वो राइट। देने में एग्जाम के लिए। राइट, और इसके और बाद एक और चीज सर, इसमें पीवाईक्यू काफी ज्यादा रिपीटेड होते हैं, आपको हर साल कम से कम 20 से 22 पीवाईक्यू आपने पढ़ा और आपको पता है इसका आंसर क्या है। हम्म तो जिससे पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं, तो अगेन अगर कोई सीरियसली पढ़े और हम्म। एनालाइज करे तो थोड़ा यूपीएससी से रिलेटिवली प्रीलिम्स क्लियर करना यहाँ पर इजियर है। यस सर। राइट। फिर इसमें जब हम मेंस पे जाते हैं तो मेंस में क्या क्या होता है इन बीपीएससी? सर बीपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि सर इसमें मेंस के 3 ही पेपर हैं। अच्छा। एक हिंदी क्वालिफाइंग है जो यूपीएससी के साथ अलाइन हो जाता है। ठीक है। हिस्से का पेपर होता है और GS 1 और 2 होता है, सिर्फ GS 1 और 2, नो नीदर GS 3 GS 4। जो GS 1 होता है सर उसमें हमारा GS 1 इसको काफी ज्यादा स्कोरिंग है सर। आउट ऑफ 300 उसमें 72 के स्टैट्स पूछते हैं, मतलब जो मैथ मतलब स्टैट्स वाले होते हैं उसमें अगर कोई भी अच्छा प्रैक्टिस करके जाए तो ही विल गेट 72 आउट ऑफ 72। अच्छा, किस टाइप के स्टैट्स के क्वेश्चन? मतलब डायग्राम, पाई चार्ट, मतलब अच्छा। एक ओके। वो दे दिया 360 और वो कुछ डाटा दिया उन्होंने, उसके तो बेसिस पे डेटा उन्होंने कुछ एनालिसिस बेसिकली। उन्होंने कुछ क्वेश्चन 4-5 फ्रेम किए, आउट ऑफ 36 36 के दो दो सेट हम्म। हो जाएगा, यू हैव टू चूज एनी टू, मतलब ये नहीं कि हम्म। एक सेट के आपने दो बना दिया और दो में से चूज करना है। तो GS 1 काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है सर। हम्म। और प्लस उसमें हिस्ट्री आती है सर, और हिस्ट्री जो हम्म। हम पढ़ते हैं नॉर्मल है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। अच्छा। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी मतलब आपको 5-7 ही थीम पढ़नी है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो हम्म। आप उससे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको पता होता है कि मेरे नोट्स में क्या क्या है, हम्म। वहां पे हो जाता है। और सर मोस्टली यूपीएससी के जो सीरियस एस्पिरेंट है दे आर हम्म। गोइंग टू बीपीएससी, क्योंकि काफी ये भी काफी ज्यादा इजी प्रोसेस हो रहा है, अभी 70 का हुआ था, 71st नोटिफिकेशन अभी चल रही है आई थिंक, हम्म। फिर 72nd क्या दिया, मतलब एक साल का ये भी प्रोसेस हो गया, 1 साल 15 महीने में आपको। एंड वैकेंसीज भी मैंने देखा है, दे आर लाइक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सर इस कमिंग। बार 1500 हैं, उसके पहले दो 2200 थी सर, तो अब हम्म। मोर देन यूपीएससी, ऑलमोस्ट डबल देन यूपीएससी, तो एटलीस्ट हम हम्म। इस पे सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी छोड़ के ही करना है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस देन हम्म। इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हम्म। आपने बताया स्टैट्स, हिस्ट्री, और क्या क्या आता है जीएस और में? सर GS 1 में सब। साइंस साइंस आती है थोड़ी सी, हम्म। और करंट अफेयर जो IR से रिलेटेड पोर्शन होते हैं हमारे, ठीक है। एंड जीएस टू में? हमारी पॉलिटी आती है, हम्म। और इकोनॉमी आती है बिहार और करंट, और ज्योग्राफी आती है बिहार और इंडिया के। ऑल राइट, तो मतलब बस सिलेबस रिलेटिवली कम है मींस का। काफी कम है, और हम्म। सबसे अच्छी बात है सर पीवाई काफी ज्यादा रिलेटेड रिपीटेड होते हैं, कि मतलब हम्म। सवाल सेम सेम लाइक यूपीएससी में सवाल सेम है, बट दे आर हम्म। जस्ट एक्सप्लोरिंग सम न्यू एंगल्स। हम्म। तो तो यहाँ पे पीवाई डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि अगर किसी ने यूपीएससी की सीरियसली प्रिपरेशन करी है हम्म तो थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज है कि हाँ, आपको बिहार रिलेटेड स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, और हम्म आपको कोर साइंस थोड़ा सा हम्म। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट अदरवाइज इट्स अ गुड ऑप्शन, एंड वैकेंसी नंबर इज ऑल्सो प्रिटी हाई। यस सर। एंड जितना मुझे याद है, एसडीएम एंड डीएसपी की भी काफी वैकेंसीज हो। काफी ज्यादा वैकेंसी आती हैं, अभी इस बार भी 100 आई थी, उसके पहले वो 200-250 थी, तो हम्म काफी ज्यादा तो जॉब प्रोफाइल्स भी काफी सिमिलर हैं, जो काफी सिमिलर है जनरली एग्जैक्टली। व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज आईएएस और आईपीएस, वो सिमिलर जॉब प्रोफाइल है। एंड आफ्टर प्रमोशन, आफ्टर सम टाइम, यू विल आल्सो गेट देयर। यस सर। मैं बता दूंगी स्टेट, जिस जो देख रहे हैं उनको बता दूंगे, स्टेट पीसीएस में भी जाने के बाद आफ्टर 15 ईयर्स जनरली आप आईएएस या आईपीएस में प्रमोट हो जाते हैं, यस सर। और एंड यू रिमेन इन दैट कार्डर, सो दैट इज हम्म। ऑल्सो गुड एडवांटेज। हाँ, होम स्टेट का एक एडवांटेज है, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो अगर मैं बिहार में कहीं बन जाता तो इट इज ऑल्सो फॉर गुड फॉर मी कि मैं अपने होम स्टेट में हूँ, और फिर हम्म। हम एक समय के बाद मनी वैल्यू ऑफ मनी इज न्यूट्रलिटी, हम्म। हम्म। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की जो हम बात करते हैं, कुछ हम्म। समय बाद हम पैसे को खाएंगे तो नहीं, हमारे पास कितने भी हम्म। पैसे हो जाए, हम्म। एंड ऑफ द डे वी नीड सम फैमिली सपोर्ट, सम इमोशनल सपोर्ट, तो वहां पे राइट। अगर जो भी जिस स्टेट के हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बिहार, हम्म। अगर कोई हम्म। भी जिस स्टेट का अगर वो एग्जाम निकलता है तो दे शुड ऑल्सो एम फॉर दैट along with यूपीएससी, कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ अपने होम स्टेट में रहे, एंड ऑफ द डे सर हम यूपीएससी के बाद भी हम चाहते हैं होम कैडर मिल जाए, हम्म। हम चाहते हैं कि होम कैडर मिले, नियर बाई स्टेट मिल जाए कि जो हमें हमें फैमिली से कनेक्ट फैमिली है। के पास रहता है। एग्जैक्टली। तो राइट। वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हाँ थोड़ा दोनों राइट। का एंट्री अलग अलग है, तो आप अब हम उस पर तो कमेंट नहीं कर सकते, बट जो है वो है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, लिमिटेड सीट्स हैं, एवरीवन हैज टू फाइट, तो राइट। यही वाली बात है, चलो। जस्ट लास्ट थिंग बिफोर यू गो, गुरु, कि आप
जो भी लोग जैसे अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, जितना यूपीएससी का एग्जाम एम्बिगुअस हो रहा है और अनसर्टन हो रहा है, आप कब रेकमेंड करेंगे कि कब किसको एक बैकअप प्लान के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए? सर अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है आप, हम्म। जैसा मैं आपको काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो हम्म। जैसे आपने कहा 3 4 के बाद, अगर 3 के बाद अगर फाइनेंशियल साउंड नहीं है आप, तो यू हम्म। मस्ट ऑल्सो हंट फॉर सम ऑफ दी ऑप्शंस। अगर आप फाइनेंशियली हम्म। बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू, बट एक समय के बाद फिर वही कहते हैं, मोनोटोनिसिटी आ जाती है। सेम राइट। चीज पढ़ रहे हैं कि हम क्या एड ऑन, हमें पता ही नहीं चलता, तो एटलीस्ट वी राइट। नीड सम अदर थिंग्स टू डू, कि पता चल जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेटर हमारे लिए हो सकता है सर। राइट। So हाँ। thank you so much, Guru, for taking the time out to speak to us. It was थैंक यू very सर। nice talking to you. सेम टू यू सर, थैंक यू। All right. Now, some people might not want to give another exam as their backup option. हो सकता है कि हमें एक और एग्जाम देने का मन ना हो. So for that, I have spoken to somebody who is the founder of a startup called Rebounds. Now, Rebounds is a startup that actually helps people get into political consulting and helps them get into public policy jobs. His name is Jigyasu. Jigyasu himself is an ex UPSC aspirant who then transitioned and started working in political consulting. And now he has opened his own startup where he's helping people transition through that journey. So now let's hear from what Jigyasu has to say and how he helps people transition to this space. After we speak to Jigyasu, I will also talk to somebody called Dishant, who is actually working in the political consulting space, so that you get a practical experience of that, idea as well. So, hi Jigyasu. Jigyasu is currently the co-founder of Rebounds, an organization that helps UPSC aspirants upskill. So, firstly, thank you for being here and talking about backup options. Thank you, Shivan, for having me here. So, Nice to can you talk tell to you. me what exactly Rebounds is and what do you guys do? So, Rebounds is India's only social venture helping ex UPSC aspirants get into fulfilling and satisfactory careers beyond civil services. Hmm. So, in the past, we have helped a lot of candidates get into careers like public policy, political consulting, impact consulting, development sector, and a lot of other generalist careers, Hmm. either like data analyst, business analyst, or in startup roles like program manager. राइट. सो जैसे किसी ने मान लीजिए यूपीएससी में अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, 3 4 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, एंड दे फील दैट दे नाउ शुड लुक फॉर अ बैकअप एंड देन मे बी along with that they can prepare or maybe they want to exit this cycle completely. तो इसमें क्या, what are the things that one needs to look out for and how do they need to chart this path out? Okay, interesting question, Shivan. Hmm. So, first of all, we talk about someone preparing for the UPSC exam, when they look for the backup, they feel that, I wanted to get into the public policy space. I wanted to create an impact. I wanted to, live a more purposeful life. So, for that, civil services or UPSC exam is just one pathway. There Hmm. are a lot of other alternative pathways through which, again, you can reach at similar positions, if not same. As Hmm. an example, let's say working as young professional with Niti Aayog or Hmm. with various other ministries. Hmm. Similarly, fellowship opportunities which are offered by various state governments. Hmm. Like currently, we have the Punjab CM Good Governance Fellowship open, and similarly, various state governments provide this. Then we have some other organizations like we have a Mukherjee Fellowship, very famous fellowship, LAMP Fellowship, which is Hmm. Legislative Assistant to MP. Hmm. And then there are some political consulting organizations also which are providing like Nehru Fellowship, which is offered by Inclusive Minds, which is an organization working only with the Indian National Congress. So Hmm. many such opportunities are available through which again you can do similar kind of work. You can leverage your UPSC knowledge, combine it with some other skill set, Hmm. and then create impact. तो let's say if somebody wants to go to one of these options, तो क्या चाहिए होता है, मतलब what is the one thing, जैसे मान लीजिए किसी ने अटेम्प्ट्स दे दिए, let's say they've written one mail Yes. and now they want to exit, तो what are the things that are needed यहाँ पर, मतलब यहाँ पे transition करने के लिए? Right. So when a ex-UPSC aspirant or UPSC aspirant typically come out of the UPSC cycle, their resume is typically blank. Means Hmm. they either do not have any work experience, they do not have any hands-on experience via projects, internship, etc., and they typically lack the market relevant skills. But when somebody is going through a resume, they are looking for two things. Hmm. Number one, you should be passionate about that role. So you Hmm. should be passionate about public policy, as an example. And Hmm. second, you should be competent in that.
So you Hmm. should have the right skills and some kind of hands-on exposure. Hmm. So this is one part which is missing but which is needed, the skills and some kind of practical exposure which can come either via projects or internship or some fellowship, volunteership, etc. Then Hmm. the second part is a lot of candidates even though have it, but they do not know how to market it well. So Hmm. marketing it well typically involves preparing an impeccable resume, a compelling cover letter, and then an optimized LinkedIn profile so that you can also reach out to people for referral. Hmm. Then after this, then if an opportunity is out there in the market, you will apply and you will Hmm. also reach out to various people for referrals. And Hmm. then you should be extremely prepared, very well prepared for the interviews, because you have to put across your story in a very coherent and compelling manner. Hmm. Because again, the interviewer has a choice either Hmm. to hire someone, let's say, who graduated very recently, have a couple of years of experience in the same Hmm. space, versus hiring you, Hmm. who graduated a little back, Hmm. prepared for the UPSC examination, gained a lot of skills there, but do not have any directly hands-on experience. Hmm. Now, even though you bring a lot of skills, Hmm. but it is you who has to market it well in front of the interviewer so that they understand that. Hmm. So तो if you यहाँ are able to do this whole thing well, your hmm. chances of getting a job should be very, very high. तो दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा आपसे फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विद द नीति आयोग और इन अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग पोजीशन और इन अ पब्लिक पॉलिसी पोजीशन are these people looking out for UPSC aspirants or is there an opportunity specifically for UPSC aspirants? First, that is the first question. Then I'll ask you the second one. Okay. Again, very good question. And a few organizations in political consulting space have even started special hirings only for ex-UPSC aspirants. As an Okay. example, Nation with Namo started a stream called ILP UPSC, which is Experienced Impact Leadership Program UPSC. Hmm. Earlier, they were hiring these ILP candidate, Experience Impact Leadership Program candidates, only from the top IIMs and ISBs. But later they realized that maybe the UPSC aspirants bring the right skills, so they directly hired them, Hmm. offered the position of senior associate at a salary of 21 LPA. And we are glad that in the past, around 4 candidates from Rebounds also converted this position at Nation with Namo. Similarly, if you talk about, let's say, Nehru Fellowship, which is offered Hmm. by Inclusive Minds, again, a couple of candidates from Rebounds also converted that, all Hmm. ex-UPSC aspirants. And based on my insider understanding, a lot of ex-UPSC aspirants are working in this space. Hmm. Moreover, an interesting story is one candidate from Rebounds, he was interviewed for Nehru Fellowship. During the interview, they felt that the candidate is more competent. So they said, okay, we will take one more round of interview and directly offer a permanent position to you instead of, let's say, a 1 year role. So instead of providing stipend of 75,000 rupees, they Hmm. provided something, higher than that and Hmm. offered a full-time position. Hmm. So they are specifically looking out for UPSC candidates now, as you say, right? Some organizations are looking for Hmm. that, especially others are open to that. All right. Second question now related to this. Uh, can you describe an ideal ex-UPSC aspirant, somebody who's exited, who is the most likely to get a position here in any of these roles? While Shivan, it's a very difficult question. It's very difficult to define any such Hmm. candidate. No, like But broad one characteristics. very Yeah. right, one very important characteristic should be that the gap year should be around 3 years. So not more than 4 years typically. Hmm. Because 3 years for an exam, 3 years of preparation for an exam like UPSC is completely justifiable. Hmm. But if you have 5 years, 6 years of gap, that is a Hmm. little less justifiable. ठीक है तो एक तो हमें gap years we have to, and this is also something that aligns with what I say, that you should not especially I say this to people who have, let's say, never appeared in the interview or have not been able to write, means that if you've spent 3 years here, your preparation is complete. Maybe at that time one can look for these upskilling opportunities and then come back here if they want to, right? मतलब एक बार Exactly. yeah. So बिल्कुल. okay, this is the one thing, that okay, gap year should be, let's say, 3 to 4 years. What are the other things? Like, do these fellowships care about So how you've performed in the exam? that is also one of the parameters. So if you Yeah. have appeared in the mains or interview stage, obviously it will give you an advantage. As an example, when Nation with Namo started this ILP UPSC stream, they said, I want candidates
who are from tier 1 college have appeared in main stage at least once and are less than 27 years of age. Have appeared in, sorry, means at least once or Means at least once. So Oh. basically have qualified prelims at least once and are less than 27 years of age. Okay. Because that is an age where some improvement or molding in the personality can be done. Right. Okay. Right. But there are other opportunities where they do not directly explicitly mention that you should be from a tier 1 college or you should have appeared in main stage at least once. If you have appeared, obviously it will give you an advantage. Understood. So that is that. Now, how does rebounds, let's say, help any candidate who's looking for this option? So, what do you do at rebounds? Okay. So as I mentioned initially, typically the candidate, when they come out of the UPSC cycle, their resume is blank. Even though they have a lot of theoretical knowledge of all these subjects, the holistic understanding of various subjects, but the practical understanding is limited. And when we, in the past transition, me and my co-founder Akshat, we also faced this challenge that our practical understanding was limited. That's why we at Rebounds bridge this gap of practical understanding and marketing of your profile. So what we typically do is we have 3 programs: Applied Public Policy Lab, Applied Political Consulting Lab, and Market Readiness Program. Via them, we provide you, number one, the comprehensive upskilling of public policy or political consulting. Then the project, which is again a very comprehensive project where you apply all your skills learned in that project and then write your white paper, which is like a policy brief. So this thing, the skills, project, and the certification from us act as a great muscle to your resume, which was missing earlier. Understood. Then we provide end-to-end support on marketing of your profile, which means support on resume, on cover letter, on LinkedIn profile optimization, on interview preparation, on take-home assignments, salary negotiations, and support on placement also. We in the past partnered with various organizations. In the future also, again, we will try to do so. So basically, we provide this complete end-to-end support which is missing. Understood. Just the last question, and this might be a difficult one for you to answer. What do you think is the greatest challenge for anyone looking for a backup plan? These are academic things, right? Somebody can go for a fellowship, read up, improve their resume, market themselves better. But I'm speaking on a more visceral mental level. Do you think there's a challenge as far as this transition to a backup option or away from UPSC is concerned? What is that and how to deal with it? Right. Again, very, very interesting question, Shivan. And I think the major gap is the aspiration gap. When people prepare for UPSC exam, they see themselves as the collectors leading the whole district. And then from there, let's say joining some other fellowship at an entry level position and then going up or growing up in that corporate ladder. So there is an aspiration gap, and a lot of people are typically not able to absorb that. That's why they, despite of starting upskilling, try to go back to, let's say, various other examinations, be it the PCS, be it the RBI or regulatory bodies examination, etc. So I think the one thing which is needed is the courage. Courage to say that, okay, I decided to give 2 full-time attempts. It's over now. Now I will focus on my plan B. I will take a job. I will settle there a bit. And then if I want, I can prepare for this exam alongside. Right. So what I basically hear you saying is that it should not like, we might have an aspiration to join the government, and of course it's probably the best job in the country or one of the best jobs in the country, but at no point should one say that this is the only thing that I'll do. I think it's important to be realistic and understand that we also have to manage our own expectations, and maybe sometimes the transition is something we should be ready for. This is something I said in my last video also, that a lot of times we do imagine that we'll make it and our name will be in the PDF and we'll celebrate, etc. But I think people do not think about, if I don't make it, then how am I going to live a happy and satisfactory and fulfilling life? And I think that's something that needs to be talked about a bit more. Right, exactly. So basically, when you talk about UPSC, it's a high risk, high reward game. Right. Now, you, in any such high risk battle, you should know what is the right time to say no. As an example, if you have 10 lakh rupees and you have to somehow invest it in the stock market, will you invest the whole money
in, let's say, a very high risk stock where either it will become 1000x or 0x, or Hmm. you will divide it. You will hedge Hmm. your risk, you will invest some amount of money in a low risk stock. Right. Obviously, any wise investor will say, Ki, I will hedge the risk. Then why are you not hedging the risk of your life? Right. Right. Fairly understandable. All right, Jigyasu, thank you so much for being here and thank you so much for speaking on this. And I think you guys are doing a wonderful job. I think it's important that these things also are talked about. It's great that you've come out and actually, made a formal platform where people who want to upskill can go and find alternate opportunities. And this is something that I think was majorly missing from the industry. And glad that you guys have started and are working on this. Thanks a lot, Shivan, for all the kind words. They act as a fuel to the vision of Rebounds. Hmm. And thanks a lot for having me here. We look forward to support all the UPSC and ex-UPSC aspirants get into fulfilling careers beyond UPSC. Thank you. Thank you. Now, we've heard about how we can go into political consulting, but now let's speak to Dishant, a person who himself is working in political consulting. Let's hear from him and let's hear from what he has to say with regards to his work experience there, how he found this job, how he transitioned towards this job, and what are the advantages and disadvantages of working in this space. He is currently himself working in this field of political consulting, so I think it would be better to hear from him with regards to how this field pans out. He's talked about his own journey, how the interview process is like, where the interview process is more stringent, where it's easy to get into, and what is the sort of job profile, long term goals, and transitions that we can do from this industry. Let's hear from what Dishant has to say. So, hi Dishant, and thank you for coming on to Clarity for UPSC to talk about backup plans. Dishant is Hi. a UPSC aspirant who is now working in political consulting. तो दिशांत यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि पहले तो आपने अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए एंड बताइए व्हेन डिड यू डिसाइड टू गो फॉर अ बैकअप. Sir, so I have given 3 attempts at UPSC and in that I have given 2 interviews. Okay. And पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया था और फर्स्ट टाइम 3 मार्क्स से लिस्ट नहीं हुआ था, तभी मुझे लगा कि अगर आप एंड तक पहुंच रहे हो तो इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एज टू व्हाट माइट हैपन, बट स्टिल आई फेल्ट एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे तो रहा हूं, बट बाय द एंड ऑफ दैट ईयर आई शुड आल्सो हैव अ बैकअप ऑप्शन रेडी. Because I do not have a very good background. I am not from any IIT or from any engineering college. I have done bachelor's in mass media, specializing in journalism. Okay. So I thought for me it would be very important to have a backup, especially at this age, if UPSC does not pan out. So I gave the next attempt also, and that is 24 attempt, and in that I missed out by 8 marks. I was hopeful I would get in, but one very good thing that happened was that in this December, after the mains result, because of the public disclosure list, a political consulting firm reached out to a lot of us, and they had kept a program open also, where they were inviting UPSC aspirants who have either exhausted their attempts or who have reached a fairly decent stage. Say they have written 2 mains or they've given an interview, and so I applied for that, and I think that is how I got in. We can talk more about that too. तो जैसे मान लीजिए कोई अभी हैं एंड दे वांट टू गो टू पॉलिटिकल कंसल्टिंग नाउ, तो पहले तो Yes. who are the people, do these firms like do they actually have a specific reach out program for UPSC aspirants? Okay. So, from what I have found out by working here is that UPSC और political consulting का fitment factor जो है बहुत सही बैठता है. They actually want people who can understand, who are both, we are interested in politics and we understand the institutions as well. Plus, हमारा जो content consume करने का जो capacity है, वो उनको normal graduate से much better लगता है. Political consulting में आप हो तो you have to deal with a lot of politicians if I talk about that role. So you have to prepare a lot of notes for them. So we have that good amount of writing skills also. So I think all of those factors do sit in well when for someone transitioning to UPSC to this field, and how they apply. मतलब see, a lot of firms have kept their options open उनकी websites पे. For example, आप उनकी website पे जाकर के देख सकते हो, तो they have these programs. One of the program is Experienced Impact Leadership Program by one firm.
दूसरा एक नेहरू फेलोशिप करके होता है इंक्लूसिव माइंड्स के लिए, विच इज वेरी पॉपुलर. So that is also a way to get into political consulting. And from LinkedIn or from other hiring sources, you have 3-4 other consulting firms. एक का नाम वराहे एनालिटिक्स है, एक का नाम शोटाइम कंसल्टिंग है, एक का नाम डिजाइन बॉक्स है. तो ये कंपनीज भी फ्रीक्वेंटली हायर करती रहती है. एंड इवन आई वाज सरप्राइज टू सी कि दे एक्चुअली हायर वेरी गुड पीपल इन देयर स्टाफिंग. यानी आईआईटी आईआईएम्स पास आउट होते हैं, डीयू की रेप्यूटेड कॉलेजेस से होते हैं, और उसके बाद भी स्टिल फील कि यूपीएससी से आया हुआ जो बंदा है या बंदी है वो बहुत नेचुरली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसलिए अब हमारे फर्म में स्पेशली इंटरनली दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपांडिंग दिस, कि हम और भी लोगों को यूपीएससी के थ्रू हायर करेंगे. तो जैसे दे आर हायरिंग दीज फर्म्स, दे आर हायरिंग पीपल फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, तो वहां पर क्या कोई क्राइटेरिया है कि नहीं, मतलब इतना मिनिमम इंटरव्यू अपीयर्ड होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है, इवन इफ somebody has not appeared in the interview they can go if they have good skills otherwise? The EILP program has a criteria of 1 prelims clear होना चाहिए at least. Okay. But I think कि because थोड़ा बहुत तो filtration ये लोग भी करते हैं, तो they would naturally prioritize someone who has written mains and who has given interview for example, and उनका थोड़ा बहुत मतलब जो basic skill set है अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एक जनरल अवेयरनेस जो हो गई, तो फिर वो जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी है तो दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज व्हाट दे गेट. सो इन दैट कैपेसिटी फिर वो लोग जो 3-4 राउंड इंटरव्यू के लेते हैं उसमें वो लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं. राइट. तो व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस? जैसे आप यू लुक फॉर द फर्म्स एंड जैसे आपने गूगल सर्च किया कि ओके व्हाट आर द पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स इन इंडिया, देन यू विल फाइंड सम नेम्स, फिर आप जाके उन पे फिर कैसे अप्लाई करते हैं वहां जाके, मतलब व्हेन डू यू अप्लाई एंड हाउ डू यू अप्लाई? जैसे ये 2 प्रोग्राम्स जो है इंक्लूसिव माइंड्स का जो नेहरू फेलोशिप और ये EILP, तो वो स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होता है. EILP विल बी एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन समवेयर अराउंड September. Okay. So at that time, based on their websites, we can fill out the form. And what I found that they are very, very responsive. मतलब the process of taking interviews to the process of filling applications, all of that they finished within a week. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको लटका के रखने वाला है. They are very straightforward and the hiring process is very smooth. And the वही application forms तो normally जैसे fill करते हैं, एक resume भेजना है, educational details, फिर शायद से कोई ऐसे टाइप कुछ लिखना हुआ कि why do you want to join this or what do you understand about politics in India. And what I found is that to sustain in this field, a basic awareness of politics and a basic curiosity is very, very important. And I think that is also what they check in the interviews also. For example, मेरे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था कि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखे जाने चाहिए, प्रैक्टिकली बताना. तो आई थिंक जब मैंने ये बोला कि उसकी कास्ट और कम्युनिटी के जो फैक्टर्स है वो देखने चाहिए, पार्टी में उसका कार्डर में कितना सपोर्ट है ये देखना चाहिए. आई थिंक ये आप जब थोड़े से क्यूरियस होते हो तो आपको पता है कि इन्हीं बेसिस पे इलेक्शन जीता जाता है. तो दे वर मे बी लुकिंग फॉर दैट. आई थिंक अपन अगर उसी जगह पे आइडियलिस्टिक आंसर देंगे कि नहीं एजुकेशन भी देखेंगे ये भी देखेंगे, तो आई थिंक दैट माइट नॉट वर्क इन आवर फेवर. राइट. तो जैसे यहाँ पर आपने इनकी वेबसाइट्स पे देयर आर सर्टेन टाइम्स जब ये फेलोशिप्स खुलती हैं या आपने देख के इनको अप्लाई किया एंड यू से कि दे आर आल्सो लुकिंग आउट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल लाइक, मतलब वहां पर काम क्या होता है एग्जैक्टली? ओके. तो एज अ कंसल्टेंट तो दे आल्सो कॉल दिस एज ए जनरलिस्ट फील्ड. यानी कि इनका काम बेसिकली 2 फील्ड्स में डिवाइडेड है. एक है पॉलिटिकल फील्ड और दूसरा है कैंपेन फील्ड. तो द रोल दैट आई हैव जॉइंड इट इज इन द पॉलिटिकल कैपेसिटी और उसको फील्ड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, FPI. तो FPI टीम में बेसिकली हम लोगों का काम ये होता है, अब जैसे कि आसाम इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो वो इलेक्शंस के पहले का एक साइकिल पूरे का पूरा डिवाइडेड होता है इन डिफरेंट फेजेस. And within those phases we have to work. So I will be allotted some legislative assembly seats, and I will be responsible for those seats end to end. I will be the link between the party, I will be the link between the candidates, and my role will be to analyze based on the survey data. We have a survey team also that will do some surveys. Based on that data, analyze what exactly is the situation for the party on ground. Is the candidate performing satisfactorily? Is there some form of anti-incumbency? So based on that, I have to prepare some notes. I have to
prepare. There are a lot of portals and softwares that we have, which we have to fill in, and based on that, we get an idea कि यहाँ हमें इन चीजों पे काम करना है, ये गैप्स फिल करने हैं. फिर दूसरा, जो हमारी सीट्स है, तो उसमें हमको ग्राउंड पे जाके इंटेलिजेंस गैदर करनी है. हमको ऑपोजिशन पार्टी से, सिविल सोसाइटी से, और भी जो प्रोमिनेंट वहां के लोग हैं उनसे मिलना है, और पूरी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सीट पे ये पार्टी को जीतने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इन कास्ट या कोहोर्ट ग्रुप्स के साथ बात करनी पड़ेगी. तो ये सारी अवेयरनेस स्टार्टिंग के इलेक्शंस के 8 महीने तक हमको करना है. और इलेक्शंस के टाइम पे 4 महीने में, वो टाइम पे जिसको पार्टी टिकट देती है, तो उस कैंडिडेट को एंड टू एंड सपोर्ट करना है. उसकी स्पीच इनपुट्स हो गई, या उसकी मतलब उसका शेड्यूलिंग हो गया, अगर कोई एरिया में वोट शेयर कम है तो उसको वहां पे जाना. तो ये सब चीजों में एक डेटा का भी बहुत रोल है कि आप वो डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दूसरा आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, और तीसरा आप नोट्स इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो कि वो पार्टी को कन्वे हो. क्योंकि आपको तो वो कैंडिडेट ने हायर नहीं किया है, आपको पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने हायर किया है एज अ कंसल्टेंट. तो आपको उनको कम्युनिकेट करना है कि ये प्रॉब्लम्स है, और हमको साथ में मिलके इन चीजों पे ध्यान देना. तो आई थिंक मोर और लेस ब्रॉडली ये रोल रहता है. और दूसरा जो साइड है ये फील्ड का, वो है कैंपेन वाला. तो कैंपेन में जो है सोशल मीडिया जो है, मार्केटिंग हो गया, या फिर कैसे कोई यूनिक कैंपेन या यूनिक वो चलाना है. अब वो ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, बेस्ड ऑन दैट एरिया, कहीं पे कोई इवेंट्स रखने हैं, तो ये सारी चीजें फिर उसमें आती है. बट बेसिकली यूपीएससी वालों के लिए जो फिट फैक्टर है वो फील्ड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का है. कैंपेन के लिए दे हायर स्पेशलिस्ट फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड और फ्रॉम मैनेजमेंट, जिनका वो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होता है. तो जैसे जो भी हमारी यूपीएससी की नॉलेज है, जैसे somebody is a serious aspirant and they've studied well, तो how does this help them, apply, how can someone apply this, or how does this help them excel in this political consulting field? यूपीएससी की नॉलेज में, फॉर एग्जांपल, आई एम इन गुवाहाटी, सो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी, फॉर एग्जांपल वी स्टडी अबाउट अहोम्स इन यूपीएससी, वी स्टडी अबाउट दीज जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज है, जो ट्राइबल एरियाज है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग टेरिटोरियल काउंसिल है. तो वो क्यूरियोसिटी से जो है हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी जो हमारा काम होगा, फॉर एग्जांपल जिसको वो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मिली है, तो उसको वो सीट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है, उसका ये क्यूरियोसिटी, उसका वो कंटेंट कंज्यूम करना और रिसर्च करने का जो वो है, एक एप्टीट्यूड है, वो बहुत काम आएगा. और यूपीएससी में हम जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, तो वी नो हाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड, क्या क्रिस्प वे में कन्वे करना है. तो यहाँ पे भी अगर हम पार्टी के लिए नोट्स लिखेंगे, कोई कैंडिडेट का कुछ कम्युनिकेशन लिखेंगे, तो वो वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू कन्वे, क्या डिमांड है, तो एग्जैक्टली हम क्रिस्प वर्ड्स में उनको बता देंगे शॉर्ट में. तो ये सारी जो एप्टीट्यूड जो हम गैदर करते हैं, प्लस एक क्यूरियोसिटी, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इंडिया, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इलेक्शंस एंड द इंस्टीट्यूशंस, तो वो चीजें इसमें बहुत जो है फिट बैठती है. Right. Just last question. It's a two-part question. Firstly, आप मुझे बताइए 2 advantages of going to this sector, and as per you, 2 disadvantages of going to this sector. Okay. Advantages is that one, this is a very good transition option where you will not feel, you will be connected to politics. So as a UPSC aspirant, जो हम ground work सीख करते थे, जो हम एक पावर सोर्सेस के पास जो एक प्रॉक्सिमिटी सीख करते थे, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है. आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर ऑफिसर एंड ही सेड कि जो जिस एज पे या जिस पीरियड में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिशियन से, मे बी एक सिविल सर्वेंट को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता वो डायरेक्ट स्केल से करने में. एब्सोल्युटली. हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इस फील्ड का. एंड सेकंड एडवांटेज कि ये एक कंसल्टिंग जॉब है, प्राइवेट सेक्टर जॉब है, तो पे स्ट्रक्चर यहाँ बहुत अच्छे है, क्योंकि कंसल्टिंग में देखा गया है लोग दे पे वेरी वेल. तो यहाँ पे भी मतलब एक सिविल सर्वेंट को इनिशियली जो पेमेंट मिलती है उससे तो मच बेटर पेमेंट है यहाँ. राइट. एंड इज देयर आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए, लेट्स से आई एम वर्किंग इन पॉलिटिकल कंसल्टिंग एंड आई हैव वर्कड फॉर 4 years. Is there now an opportunity now for me to transition to other consulting areas also? This is a very niche field, so transition might be difficult, but again this depends on the person, if he has those sort of contacts and if he has that sort of aptitude. So I have seen one of my friends who used to work there, वो अब KPMG में है. तो वो हिसाब से
तो मतलब वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि इज इट इजी और Right. नॉट, बट Right. बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डोर्स विल ओपन फॉर यू। आप पॉलिसी मेकिंग में आप क्योंकि जो मैनिफेस्टोज होते हैं पार्टीज के, वो भी बहुत ज्यादा इनपुट उसमें कंसल्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती है। Right. तो वो हिसाब से पॉलिसी डोमेन में, इम्पैक्ट कंसल्टिंग में, सोशल सेक्टर्स में जो है वो डोर्स आपके बहुत इजीली ओपन हो जाते हैं। And हार्डकोर कंसल्टिंग थोड़ा yeah, मुश्किल होता होगा yeah, बिजनेस वाला। yeah. And just a couple of disadvantages of this sector, things that you think are that might be challenges for somebody who's entering here. Hmm. First disadvantage might be that although I would look it as an advantage जो सिविल सर्वेंट्स करते हैं कि आपको एक स्टेट में जाके काम करना है आपके घर से दूर, जो Right. काडर था फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा गुवाहाटी तो मैं वहां पे हूँ, तो ये Hmm. एडवांटेज भी है, पर कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी Right. होगा Of कि course. यू हैव एवरी ईयर जहाँ पे इलेक्शंस है आपको आपका स्टेट चेंज करके जाना है। नेक्स्ट ईयर एमपी हुआ या कहीं और हुआ तो आपको वहां पे जाके काम करना है। और Right. दूसरा डिसएडवांटेज थोड़ा सा, ऑल्दो वीकेंड्स ऑफ होते हैं, Hmm. बट इलेक्शन के टाइम पे वी कॉल दैट एंड का 4 months पीरियड एज वॉर पीरियड। वॉर मोड में काम हो रहा है वहां पे, तो Hmm. वॉर रूम होते हैं, पॉलिटिकल वॉर रूम, कैंपेन वॉर रूम। तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बहुत वहां पे डिस्टर्ब होगा। Hmm. आपको 12 आवर पर डे या वीकेंड्स को भी आपको जो है काम वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि Hmm. आप फिर ग्राउंड पे भी हो, कैंडिडेट्स आपको कॉन्स्टेंटली कॉल करेंगे कि क्या करे, कैसे करना है। तो वो, बट इंटरेस्टिंग भी है, केओटिक भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। तो वो Right. एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वहां पे। Right. All right, Dishant, thank you so much for your time and thank you for speaking so openly about this. I'm sure a lot Yeah. of people will gain a lot from your experiences and what you've said. Okay, thank you for having me. Thank you. Thank you. All right, so the last guest in this video is someone who gave me the opportunity to execute my backup plan, which has now become my plan A. He is none other than Varun Jain sir, the founder of Sarthi IS. So I've also spoken to Varun sir about opportunities in the coaching industry. That if someone wants to come back to coaching and someone wants to work in this industry, what are the opportunities available to them? How do we transition? And what are the various roles, both academic and non-academic, if someone wants to work in the coaching industry? And also, what are the advantages and challenges of working in this industry? So now let's hear from Varun sir and let's hear what he has to say. So, hello Varun sir. Now I'm going to just talk to you about backup options in the coaching industry. So firstly, sir, thank you for doing this and thank you for coming on to Clarity for UPSC. All right. Thank you. So, sir, firstly, the first question is, what are the type of roles that somebody can expect in the coaching industry? Like, क्या roles हैं and what types of jobs are there? All right. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें जॉब्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। एकेडमिक जॉब्स में अगर हम देखेंगे तो टीचर्स हैं, देन मेंटर्स हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देन इवैल्यूएटर्स हैं। दीज आर द 4 प्राइमरी जॉब्स जो आपको एकेडमिक रोल्स में दिखेंगी। नॉन एकेडमिक रोल्स में मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है कंप्लीटली। उसके अंदर काउंसलर्स भी हो सकते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, फिर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजर्स हो सकते हैं। तो जितना भी पूरा मैनेजमेंट है सिस्टम का, फिर जैसे ऑफलाइन सेंटर के हेड हैं वो हो सकते हैं। तो इस टाइप के नॉन एकेडमिक जॉब्स इस सेक्टर में हैं। Right. So, sir, let's talk of them one by one. So, let's say somebody has to enter an academic role. Like you said, there are teachers, there are mentors, there are content creators, and there are evaluators. So, how do you enter these roles? And is there a entry criteria for these roles? If you want to enter into Academic ones at the moment. All right. For the academic role, I believe there are 2 ways. First, of course, आज के टाइम में जैसे YouTube प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, तो दीज आर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव द स्किल सेट, इफ यू हैव द कम्युनिकेशन, तो आप अपने चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे नए नए फेसेस हैं जो कि YouTube पे आते हैं, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड द टीचिंग कंटेंट विद द स्टूडेंट। एक तो ये मेथड है। फिर जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, उनके पास आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स विच आर एग्जिस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। उनकी वेबसाइट पे आप करियर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। उन सब प्लेसेस पे अच्छा सा रिज्यूमे बना के रखिए। जहां तक बात रही क्राइटेरिया की, देखिए एकेडमिक रोल्स में अगर हम टीचर्स में बात करेंगे
मेंटर्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे सारथी आईएएस का तो एक सिंपल क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपने मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया हो, एटलीस्ट आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हो इस एग्जामिनेशन के, है ना। और तो वो क्राइटेरिया हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करूंगा अक्रॉस द इंडस्ट्री ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, है ना। देर आर पीपल हु हैव नॉट इवन क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इवन देन यू कैन सीक अ करियर ओवर हियर, है ना। आप जा सकते हैं, देर आर मल्टीपल प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, बट जितने भी ब्रांड्स हैं सब लोग हायरिंग करते हैं, चाहे अगर आपने प्रीलिम्स नहीं भी क्रैक किया है तब भी। Even in, you're saying even in academic positions? Yeah, even in academic position, there are many teachers in this ecosystem who teaches well. ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ाते, कोई ऐसा 100% नेसेसरी लिंकेज नहीं है। हो सकता है कि किसी ने प्रीलिम्स ना क्रैक किया हो, खुद ही बोलते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने का और आपके कैलिबर से उसका कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में देर आर टीचर्स जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं क्रैक किया बट दे आर टीचिंग वेल। तो सर मान लीजिए सारथी आईएएस में क्राइटेरिया नहीं होता ऑफ लेट्स से इंटरव्यू अपीयरेंस जो हम रखते हैं फॉर एवरीवन हु वर्क्स हियर, लेट्स से क्राइटेरिया नहीं होता, तो किसी भी रेज्यूमे में व्हेन यू आर लुकिंग एट अ रेज्यूमे एंड इट वाज फॉर एन एकेडमिक पोजीशन, व्हाट थिंग्स वुड यू लुक एट अदर देन देयर पेडिग्री ऑफ कोर्स? ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द रिज्यूमे देयर आर टू लेयर्स। एक तो है, सबसे पहले हम रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते टाइम तो जो रिज्यूमे में उसके एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसका ऑप्शनल क्या है, दीज थिंग मैटर। और उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, जैसे देर आर पीपल जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग मेंटरशिप कर रहे हैं, इवैल्यूएशन का रोल कर रहे हैं, तो अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो इन दो चीजों को मैं वैल्यू करता हूं, है ना। एंड अगर मैं कोई इंटरव्यू ले रहा हूं तो उस इंटरव्यू में एज पर दी रोल मैं देखता हूं कि क्या क्वालिटीज मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेंटरशिप के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो आई सीक टू थिंग्स। एक तो एग्जाम की नॉलेज होनी चाहिए जो मोस्टली रिफ्लेक्टेड हो जाती है वेदर उसने मेंस क्रैक किया या नहीं, ठीक है। एंड सेकंड क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी को एग्जाम समझ में आता हो और वो दूसरे को उस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी समझा भी पाए, तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट, तो आपने जैसे बोला नॉलेज, कम्युनिकेशन एंड व्हाटएवर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दैट वी हैव, ये हुआ हमारे एकेडमिक साइड पे, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, राइट। नाउ लेट मी कम टू द अदर साइड व्हिच इज द मैनेजमेंट साइड. Now, on the management side, like you said, there are people who handle operations, who are, let's say, counselors, या फिर people who are, let's say, social media managers. तो सर यहाँ पर if somebody wants to enter, what is the criteria? क्या यहाँ पर भी हम academic की experience देखते हैं कि उन्होंने interview दिया है, या are there other things that you look at when you are hiring here? ऑनेस्टली एट सारथी आईएएस अगर मैं बोलूं, मैनेजमेंट में भी मेरा एक फोकस होता है कि द पर्सन अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर मैनेज भी करना है तब भी आपको कोर्सेज के बारे में पता होने चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप मैनेज कर सकते हैं, बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट वहां पे जो एकेडमिक नॉलेज है वो थोड़ी कम मैटर करती है ना। आइडिया होना चाहिए एग्जामिनेशन का, बट अलोंग विद दैट जो उसका सॉफ्ट स्किल है, जो ह्यूमन स्किल है, वो थोड़ा चेक किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में मोस्टली यू हैव टू डील विद पीपल, यू हैव टू मैनेज पीपल। तो एक तो ये सॉफ्ट स्किल प्लस ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल नोटिस किए जाते हैं इन नॉन एकेडमिक रोल में। नॉन एकेडमिक रोल में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सपीरियंस। राइट सर, किसी एक नॉन एकेडमिक रोल के लिए जस्ट वन, कुड यू डिफाइन और डिस्क्राइब अ जॉब रोल? बिकॉज सर जैसे टीचर्स, मेंटर्स, इवैल्यूएटर्स, इनका रोल स्टूडेंट्स को मोस्टली क्लियर होता है, like because they're mainly facing the students anyway, so the students know what they're going through, but on the back end maybe they don't really know. तो जैसे कोई एक operations में, let's say there is an operations manager, what does their job look like? All right, for example this MMP plus program, तो हमारा सारथी आईएएस का जो MMP plus प्रोग्राम है, इसमें there are multiple teachers, GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में, उसके साथ यहाँ पे राइट स्मार्ट भी है, लॉज भी है। तो अब यहाँ पे एवरी टीचर इज परफॉर्मिंग देयर ओन रोल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोकस है सोसाइटी पे। अब सोसाइटी में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें लॉज में क्या क्वेश्चन सिंक में है, ठीक है। फिर हमारे जो मल्टीपल कंपोनेंट चल रहे हैं एक कोर्स के, उनके बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन बेटर मेंटेन हो रहा है, टॉपिक कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। तो देयर इज अ पर्सन जो कि इस सारे कोऑर्डिनेशन को एंश्योर करेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट इज वन रोल जो कि कोर्स कोऑर्डिनेटर जिसे हम बोलते हैं। जैसे इफ आई टेल देम फ्रॉम माय साइड,
For example, my class is scheduling and just coordinating with others कि आज राइट स्मार्ट की क्लास है तो कल लॉस की उसी की क्लास होनी चाहिए, उससे पहले सारा कंटेंट डिलीवर हो जाना चाहिए, क्या क्लास टाइम पे अपलोड हो गई, पीडीएफ ऑन टाइम गए या नहीं, कोई स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो उसको हैंडल करना. आई थिंक दीज आर द रोल्स दैट एन ऑपरेशंस पर्सन डज. Right. Sir, just a couple of more questions. Firstly, what do you think are the advantages of working in this sector? अगर कोई ये सेक्टर चूज करता है तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया था व्हेन आई एंड अप माय ओन यूपीएससी जर्नी. तो मेरे पास ऑप्शन थे. आई वाज फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड में, कॉर्पोरेट में भी जा सकता था. तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने यूपीएससी एग्जामिनेशन में 4-5 साल लगाए हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप उस पर्टिकुलर नॉलेज को, उस पर्टिकुलर स्किल सेट को ही यहाँ पे कंपाउंड कर सकते हैं. देखिए, अगर आप यहाँ पे 4-5 साल लगाने के बाद किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां से आपको स्क्रैच से शुरू करना है, तो यू हैव टू कॉम्पीट विद पीपल जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में 4-5 साल से हैं. आपको नॉर्मली कॉम्पिटिशन अपने पीयर ग्रुप से होता है ना. तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो आपने पीछे टाइम लगाया है एग्जाम में, है ना, उसी की नॉलेज को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं. दूसरा एडवांटेज इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा, जैसे हम शक्ति का एग्जाम्पल ले सकते हैं. शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1. वाइल शी वॉज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, शी वॉज ऑल्सो गिविंग द एग्जामिनेशन, राइट. शी वॉज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर. तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो वर्क है और जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है. ठीक है. मोस्टली वॉट एवर शी इज टीचिंग और गाइडिंग द स्टूडेंट, शी वॉज ट्राइंग अप्लाइंग ऑल दीज थिंग इन हर ओन स्टडीज एज वेल. दिस इज द सेकेंड एडवांटेज. ठीक है. थर्ड एडवांटेज मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 3-4 सालों में, आई थिंक ऑनेस्टली वी नीड टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट, कि पे स्ट्रक्चर भी अगर आप बाकी कॉर्पोरेट जॉब से कंपेयर करेंगे तो पैरेलली है, इक्विवेलेंट है. तो दैट इज आल्सो द एडवांटेज हियर. राइट. एंड सर सिमिलरली व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस इंडस्ट्री? जैसे सर एक चीज जो मुझे लगती है कि लेट्स से अगर हम बिल्कुल टीचर्स या मेंटर्स का रोल हटा दें, जो बिल्कुल एकेडमिक रोल्स हैं, उसके अलावा जो बाकी रोल्स हैं, डू दे एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड व्हाट आर द अदर चैलेंजेस अदरवाइज? First, answering your question with respect to non-academic roles, देखिए, once you are well in the management roles, तो आप खाली यूपीएससी इंडस्ट्री सेंट्रिक नहीं रहेंगे, आप पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में रोल कर सकते हैं, राइट. आईआईटी जेईई एग्जाम है, नीट एग्जाम है, देयर आर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट एज वेल. तो अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल बाकी जगह भी सेम अप्लाई होंगे. तो डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल बेसिकली. राइट, डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल. ठीक है. एंड अदर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो 2 चैलेंजेस मेरे माइंड में रहते हैं जो मैं भी फेस करता हूं कई बार यहाँ पे. पहले तो दिस सेक्टर ऑलवेज रिमेन वल्नरेबल टू गवर्नमेंट पॉलिसी. सो फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैज मल्टीपल टाइम्स सेड दिस थिंग दैट दे फोकस ऑन मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना. तो आगे जाके अगर लेटरल एंट्री स्टार्ट होती है, वैकेंसीज बहुत रिड्यूस होती हैं, तो दिस इंडस्ट्री विल फेस द चैलेंज. दैट इज द वन चैलेंज दैट आई सी, कि जॉब सिक्योरिटी फ्यूचर में एक प्रॉब्लम रह सकता है. ठीक है. सेकंड चैलेंज जो मैंने काफी लोगों में नोटिस किया है, ऑनेस्टली मैंने नहीं फेस किया ये कभी, मैंने क्या देखा है कि देयर आर पीपल जो अपनी जर्नी यूपीएससी के एंड करके जब इस इंडस्ट्री में काम करने आते हैं और 2-3 साल में जब देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उनके लिए इमोशनली ये मैनेज करना खुद के लिए कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उनके सामने बहुत सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, तो ये काफी लोगों के लिए इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है. So, sir, just the last question. Again, if somebody has to enter this now, आपके हिसाब से who are the people who should take this decision to enter this industry? So, look, I'll be very honest while answering this question. ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे इंडिया में हर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, ऐसे ये इंडस्ट्री भी कॉम्पिटिटिव है. अगर आप टीचर मेंटर के रोल में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके क्रेडेंशियल मैटर करते हैं, है ना. अगर आपने मेंस क्रैक किया है, आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आपने एग्जाम क्रैक किया है, तो यू कैन इजीली एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री. और अगर आपने प्रीलिम्स नहीं क्रैक किया है तो इस इंडस्ट्री में एंटर करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा. पहले तो ये आइडेंटिटी मेकर्स हो गए सिंपली, जो आपके रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट होते हैं. फिर बात करते हैं आपके स्किल की. कई बार हमारा रिज्यूमे हमारे स्किल सेट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है ना. फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन है, बेटर टीचिंग स्किल है, जो कि शायद आपके रिज्यूमे में नहीं दिख रहे. लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव बीन वेरी लकी
है ना, वी हैड द स्किल ऑफ टीचिंग, है ना, हमने इससे पहले कहीं काम नहीं किया, जब हम यहाँ पे आए हमने अपने यूट्यूब पे लोगों को पढ़ाया तो पीपल लाइक अस, राइट। तो अब अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो यू शुड एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। पहला तो मेरा सजेशन ये रहेगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या लगता है कि यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वंस यू आर सीकिंग अ बैकअप प्लान, तो दैट बैकअप प्लान इज समथिंग ऑन विच यू विल बी वर्किंग फॉर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर, ठीक है। तो आपको खुद भी सोचना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा लगता है ना। व्हाट आई हैव सीन इज कि देयर आर सर्टेन माइंडसेट फॉर द पीपल हु सेज कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरे को तब भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है। बैंकिंग एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। आई हैड दिस थिंग वेरी क्लियर इन माय माइंड आफ्टर द फोर्थ अटेम्प्ट इटसेल्फ कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो आई विल गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, मेरा फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ क्लियर हुआ, बट मैं मेंस लिखने नहीं गया। आई वाज श्योर अबाउट दिस थिंग, अगर यूपीएससी हो गया तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो पीपल हु हैज दिस माइंडसेट कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में जाना है, दे शुड कम टू दिस सेक्टर। And sir, is there something that some academic roles में जैसे आपने बोला कि credentials और skills matter करते हैं, but in the operational roles or in the management roles, is there something they can do, some degree, some fellowship, something like that, that would increase their chances of entry? Honestly, there are a lot of certification courses. For example, if you see with respect to the marketing, there are a lot of courses are coming on different platform like Udemy, Coursera, etc. But मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट रोल्स में एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। आपको नए प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि नए प्लेयर्स आपको इजीली चांस दे देंगे, क्योंकि उनके पास जो वर्क का क्वांटम है वो थोड़ा कम है, तो आपके लो स्किल सेट से भी वो मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली जो नॉन एकेडमिक रोल है, जो मैनेजमेंट के रोल है, वो ऑन द जॉब आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वंस यू एंटर समवेयर, है ना, तो अब आप उसके बाद इवॉल्व करते रहते हैं, आप वहीं पे जाके सीखते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप मैनेजमेंट रोल में एंटर करना चाह रहे हैं तो गो टू द ब्रांड्स जो कि अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटिवली न्यू है जर्नी में। दे माइट बी गिविंग यू चांस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट अक्रॉस द ईयर्स जैसे आपको 2-3 साल मैनेज करते हो जाएंगे, फिर आप एक बड़े ब्रांड में भी ट्राई कर सकते हैं। So what you're saying is that maybe somebody can have these certification courses, but ultimately it matters how much they understand the exam. And why जो let's say there's some new player that's coming up, वहाँ पर जाना may be a little bit easier if somebody is looking for a management role. And otherwise, if they have to come to an academic role, then of course their credentials will matter. Right. Credential and skill set. Right. All right, sir. Thank you so much for your time. All right. Thank you.